السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناولٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے پلکوں پر ٹھہرے خواب، اور یہ لکھا ہے حبیبہ عمیر صاحبہ نے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ارے دفعہ ہو جا منحوس، اپنی شکل گم کر میرے سامنے سے کیا کر رہی ہے یہاں پر کھڑی ہو کر؟ وہ مامی، میں نے تو کیا تھا آپ کا کمرہ ٹھیک، وہ منمنائی۔ ارے کیا تھا تو کیا جن ہے یہاں جو دوبارہ خراب کر گئے؟ ایک منحوس تو، اوپر سے تمہارے جھوٹ، وہ بری طرح گرجی۔ چل دفعہ ہو جا ورنہ نہ جانے کیا کر دوں۔ وہ اسے دھکا دے کر اٹھیں، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کس نے کیا ہوگا، پلٹی تو وہ سامنے ہی کھڑا ہنس رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جبکہ آنسو خود بخود روئی جیسے گالوں پر بہہ نکلے۔ رقیہ بیگم جب کمرے میں آئیں تو عجیب حالت ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی کشتی کر کے نکلا ہے۔ یہاں سے ہر چیز الٹ پلٹ تھی، بستر کی چادر زمین پر پڑی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اخبار زمین پر تھے۔ انہوں نے ماتھا پیٹ لیا۔ میں نے کمبخت کو کمرہ ٹھیک کرنے کو کہا تھا، منحوس نے اور ہی بگاڑ دیا۔ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے اس کو، جو کام کہو الٹا ہی کرتی ہے، اوپر سے جھوٹ۔ اف توبہ توبہ، وہ سامان سمیٹ رہی تھی اور ساتھ ہی ودیعہ کو کوس رہی تھی۔ وہ چپ چاپ باہر گراج میں آ گئی اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مزہ آیا مس ودیعہ؟ پیچھے سے وہ آ کر بولا، مگر اس نے منہ نہیں اٹھایا اور وہ نکلتا چلا گیا۔ ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو تم ودیعہ؟ ولی نے آ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سمجھ گیا کہ پھر مما نے کچھ کہا ہے اسے۔ چلو اٹھو آؤ اندر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ آج وہ کسی بھی قسم کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہر کام کچھ زیادہ دھیان سے کر رہی تھی۔ پہلے اس نے ڈسٹنگ کی تھی، اب کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ سب رات کا کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ ودیعہ، اس نے ولی کے کمرے میں دودھ کا گلاس دینا تھا اور باقی سب کو چائے۔ اس نے چائے کا پانی رکھا اور دودھ اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیا۔ اس کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ آلی کا سامنا کرے، کیونکہ آج ایک دفعہ پھر اس کی وجہ سے مامی سے ڈانٹ پڑی تھی، مگر یہ اس کی مجبوری تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سب کو چائے دینے کے بعد اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 10:30 بج رہے تھے۔ آج پھر اتنی دیر ہو گئی اور ابھی میں نے ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ فراک سے صاف کر کے بولی۔ اپنے کمرے میں آ کر، کمرہ کہنا غلط ہوگا، وہ اسٹور تھا، اس میں ہی اس کا گدا بچھا ہوا تھا۔ وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ تھکن سے برا حال تھا، بڑی مشکلوں سے اٹھی اور کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے ہوم ورک کرنا تھا اور نہ کرنے کی صورت میں وہ میڈم سے مار ہرگز نہیں کھانا چاہتی تھی، سو کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے آ کر بیگ رکھا تھا کہ مامی کی آواز آ گئی۔ جی مامی، آپ نے بلایا ہے؟ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ ہاں میں نے سالن بنا دیا ہے، تم ذرا سلاد بنا دو اور ولی علی کو کھانا دو، بعد میں مجھے کچن صاف ملنا چاہیے، یہ کہہ کر نکل گئیں، یہ جانے بغیر کہ وہ بھی تو دونوں کے ساتھ واپس آئی ہے اور اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔ اس نے حکم کی تکمیل کی اور کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ سیڑھیوں کے پاس آ کر اس نے دونوں کو آواز دی، ولی بھائی، علی بھائی آ جائیں، کھانا کھا لیں، اور خود کچن میں چلی گئی۔ پہلے کاؤنٹر صاف کیا اور پھر گندے برتن سنک میں رکھنے لگی۔ ودیعہ، پانی لا دو، علی نے پکارا۔ جی بھائی، یہ کہہ کر فریج سے ٹھنڈی بوتل نکالنے لگی۔ یہ لیں۔ ٹیبل پر بوتل رکھتے رکی تو ولی بول پڑا، تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے اور کام کرنے لگ گئیں؟ اس نے خود پر نگاہ دوڑائی تو خود کو اسکول کے کپڑوں میں دیکھا۔ بھائی ابھی بدل لیتی ہوں، پہلے کچن صاف کر لوں، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ علی اکثر بے نیاز کھانے میں مصروف تھا۔ کچن میں کام کرتے اس کے کپڑوں پر سالن کے داغ لگ گئے۔ چلو یہ نئی مصیبت ہے، اب یہ بھی خود ہی دھونا پڑے گا، وہ چڑ کر بولی اور کمرے میں آ گئی۔ بھاپ اڑاتے چائے کے کپ لے کر وہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم ماموں، وہ چائے دیتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا، انہوں نے پیار دیا۔ بھائی چائے، وہ علی کو کپ دے کر بولی۔ ہوں رکھ دو، وہ ٹی وی میں کھویا ہوا تھا۔ مامی آپ کی چائے، وہ انہیں کپ تھما کر بولی اور ولی کا کپ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ رقیہ بیگم، تم اس بچی سے اتنا زیادہ کام کیوں کرواتی ہو؟ حالانکہ میں نے ملازمہ رکھنے کو کہا ہے، وقار صاحب ان کی طرف مڑ کر بولے۔ ارے کہاں کرواتی ہوں اس سے کام، وہ حیران ہو کر بولی۔ اچھا تو تم کام نہیں کرواتی بچی جو سارا دن گھن چکر بنی رہتی ہے؟ رہنے دیں، آپ تو بس سارا دن میری کمر ٹوٹتی ہے، سارے گھر کا کام کرتی ہوں، ملازمہ تو صبح آتی ہے، جھاڑو مارا اور گئی، بعد میں سارا کام میں ہی کرتی ہوں۔
और अगर वो शाम की चाय बना देती है तो कौन सी बड़ी बात है। अरे यहाँ रहती है, मुफ्त में सब मिल रहा है, जरा हाथ हिला देगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। बेगम, खुदा से डरो, तुम 10 साल बच्ची से कितने काम करवाती हो, मैंने तुम्हें कभी काम करते नहीं देखा। बस जब घर आता हूँ तो सिर्फ बच्ची ही कभी इधर तो कभी उधर दिखाई देती है। तुम या तो टीवी देखती पाई जाती हो या फोन पर बात करती। वो अफसोस से बोले, आप तो बस नजर ही रखिएगा, वो कहकर उठकर चली गई। वदिया 5 साल की थी जब उसके वालिदैन की वफात एक हादसे में हुई। तब वकार साहब उसे घर ले आए। हालांकि उसके ददियाल वाले भी थे, मगर उन्होंने बहन की मोहब्बत में आकर उसे सीने से लगा लिया था और रुकैया बेगम की गोद में उसे दे दिया था और कहा था शायद अल्लाह ने हमें बेटी इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि वदिया ने आना था। कुछ टाइम तो वो खामोश रही थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता उनके दिल में वदिया के लिए गुंजाइश खत्म हो गई थी और उसने एक हाथ उनकी बहन का भी था, जो गाहे-बगाए उनके कान भरती रहती थी। जब वदिया घर आई, उसके महीने बाद ही वकार साहब की वालिदा बेटी का गम बर्दाश्त ना कर पाईं और खुद भी खालिक़े हकीकी से जा मिली। तो इसका सेहरा भी वदिया के सर थोप दिया गया कि लड़की मनहूस है। पहले अपने माँ-बाप को खा गई और अब इस घर में सब्ज़ कदम रखे तो नानी को निकल गई। तब से अब तक मामी का रवैया उसके साथ सख्त से सख्त होता जा रहा था, क्योंकि रुकैया बेगम कानों की कच्ची थी, लिहाजा लोगों की बातों में बहुत जल्द आ जाती। वकार साहब ने काफी बार समझाने की कोशिश की, मगर हर बार गुस्से में आकर वॉकआउट कर जाती और वो सिर्फ अफसोस करते रह जाते। वदिया लोगों के रवैयों से बहुत हसास हो गई थी। वो बहुत खामोश रहती थी। वकार साहब ने उसका दिल बहलाने के लिए उसको आली के खिलौने दिए, वली को भी समझाया कि उसका ख्याल रखा करे, मगर शायद वकार साहब की कोशिशें कम पड़ रही थी। इस उम्र के ज्यादातर बच्चे अपना ज्यादा वक्त खेल कूद में गुजारते थे, जबकि वो घर के काम करती थी, कभी बर्तन धोती तो कभी कपड़े सुखा रही होती, कभी चीजें ठीक कर रही होती तो कभी डस्टिंग कर रही होती। गर्ज वो मसरूफ ही मिलती। वली चूंकि उससे 5 साल बड़ा था, जबकि आली उससे 2 साल बड़ा था। वली चूंकि समझदार था, लिहाजा वो कोशिश करता कि वो खुश रहे। वदिया के आने के बाद वकार साहब ने उस पर तवज्जो दी, जबकि आली को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसकी दादी की वफात के कुछ अरसे बाद आली का कुत्ता, जो उसने बहुत शौक से पाला था, कुछ गलत खाने की वजह से मर गया, तो उसे पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की मनहूस है। वकार साहब की अदम तवज्जोही की वजह से वो खुद ब खुद रुकैया बेगम के करीब हो गया। जब भी वकार साहब आली के खिलौने वदिया को देते, तो उसके तन बदन में आग लग जाती, मगर बाप के सामने बोलने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी, लिहाजा चुप रहता। अलबत्ता इसका बदला वो वदिया का कोई काम बिगाड़ कर उसे रुकैया बेगम से डांट तो कभी मार पिटवा कर ले लेता था। उसे इस लड़की को तंग करके अजीब सी खुशी मिलती थी। आज छुट्टी होते वक्त वो गेट से निकली तो पता नहीं कौन सा जुलूस निकला हुआ था। वो वहीं खड़ी हो गई। कुछ देर बाद आली भी आ गया। सड़क के दूसरी तरफ उनकी वैन थी। उन गाड़ियों का तांबा बना हुआ था। बहुत भीड़ थी और गाड़ियां तेज रफ्तार भी थी। आली उसे वहां अकेला छोड़कर वैन की तरफ बढ़ गया। अरे आली यार, वदिया कहाँ है? अभी तक नहीं आई? वली ने फिक्रमंदी से पूछा। सड़क के दूसरे तरफ खड़ी है, वो बोला। और तू उसे अकेला छोड़ आया? हद है यार तेरी भी, वली ने गुस्से से बोला और वदिया को लेने चला गया। वदिया चलो आओ, वली ने हाथ पकड़कर उसे सड़क पार कराई और वैन में बिठा दिया। उसने खुशमगीन नजरों से आली को घूरा। वो बाहर गाड़ियों को तक रहा था। वदिया ने अपना सर झुका दिया। अम्मी, भई आप इससे रोटियां ना बनवाया करें, देखें न जाने कौन कौन से मुल्कों के नक्शे बनाती है। आली ने रोटी को उठाकर हवा में लहराया, जबकि वो किचन में खड़ी होकर सुन रही थी। अरे बेटा, तू नाराज ना हो, मैं तेरे लिए खुद बना दिया करूंगी, वो उसे चुमकारते हुए बोली। बेचारी बना तो देती है ना, वली ने वदिया की तरफदारी की। भई मेरे गले से तो नहीं गुजरती ये रोटी, आपको खानी है तो आप खाओ, वो कहकर रोटी फेंक कर चला गया। अम्मी, आप इसे समझाएं, ये दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, वली ने रुकैया बेगम को नाराजगी से कहा। अरे भई, अभी बच्चा है ना, इसीलिए ऐसा करता है, वो टाल गई। वदिया की आंख भर आई। कितनी मुश्किलों से इस नन्ही सी जान ने रोटियां पकाई थी। 2 जगह से उसका बाजू भी जल चुका था और आली को कद्र ही नहीं थी। आज वकार साहब को प्रमोशन मिला था और उसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकारी घर छोड़कर अपने नए घर, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। जहाँ खुशी थी, वहाँ दुख का हल्का सा साया भी था। आखिर को वो तकरीबन 15 सालों से इस जगह रह रहे थे। मुलाजमत के साथ उन्हें घर भी मिल गया था। इसी वजह से उन्होंने अपना आबाई घर बेचकर सरकारी घर में शिफ्ट होने का फैसला किया था। उन्होंने अपने आबाई घर से मिलने वाली रकम
اور کچھ سیونگ کر کے نیا گھر بنایا تھا، اور آج یہ نوید سننے کو ملی تھی کہ وہ اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ رقیہ بیگم کی خوشی تو دیدنی تھی، جبکہ تینوں بچے الگ خوش تھے اور ناچ گا رہے تھے۔ آج انہیں اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تیسرا دن تھا۔ ان دنوں میں ان کا برا حشر ہو گیا تھا۔ شفٹنگ میں سارا سامان منتقل کرا کے انہیں دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ بہت محنت اور لگن سے رقیہ بیگم نے اپنے گھر کو سیٹ کیا تھا۔ پچھلے گھر میں یہی کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ گھر اپنا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر نئے گھر میں انہوں نے اپنے سارے شوق پورے کیے تھے۔ پورے گھر کو بہت ذوق سے سجایا تھا۔ چونکہ ودیع کے مڈل کے پیپرز سے فارغ ہوئی تھی، اسی لیے اس نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ رقیہ بیگم کا ذوق اعلیٰ درجے کا تھا۔ کلرز کی سلیکشن سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک اس چیز کی ترجمانی کر رہے تھے۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا، مگر پہلے گھر کی نسبت کشادہ تھا اور نسبتاً بڑا تھا۔ یہ 3 بیڈ رومز کا گھر تھا۔ اس کے علاوہ وہ پیچھے چھوٹا سا صحن تھا اور اسٹور روم تھا، جبکہ آگے کی طرف چھوٹا سا پورچ اور چھوٹا سا گارڈن موجود تھا۔ یہ گھر ایک نئی کالونی میں بنا تھا، لہٰذا زیادہ آبادی نہ تھی۔ ودیع کی قسمت میں پھر سے اسٹور روم آیا تھا، جبکہ ایک کمرہ وقار صاحب اور ان کی بیگم کا تھا اور باقی 2 ولی اور عالی نے قبضہ کر لیا تھا۔ وقار صاحب نے آ کر ودیع سے چائے کی فرمائش کی اور گارڈن میں آ کر کاٹ چھانٹ کے ساتھ نئے پودے لگانے لگے۔ انہیں باغبانی کا شوق تھا، لہٰذا چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتے تھے۔ آفس سے چونکہ کچھ چھٹیاں لی ہوئی تھی، اسی لیے دن رات اسی میں مصروف تھے۔ ارے میاں، آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ رقیہ بیگم ہانپتی ہوئی باہر آئیں۔ ہاں بیگم، ہم نے کہاں جانا ہے، یہیں ہے، وہ قینچی سے خشک ٹہنیوں کو کاٹتے ہوئے بولے۔ ماموں چائے۔ ودیع چائے لے آئی۔ اے ودیع، اندر سے کرسی اور چائے مجھے بھی لا کر دے۔ رقیہ بیگم نے حکم صادر کیا۔ جی مامی، وہ کہہ کر اندر چل پڑی۔ وہ کرسی اٹھا کر لا رہی تھی کہ عالی آ گیا۔ کہاں لے جا رہی ہو یہ کرسی؟ بڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ باہر مامی کو دینے، ودیع نے نظریں جھکا کر کہا۔ نہ جانے کس ڈر سے وہ اسے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، صرف اتنا جواب دیا۔ وہ بڑھنے لگا تو وہ بول پڑی، اگر باہر جا رہے ہیں تو یہ کرسی لے جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اس نے مڑ کر ودیع کو دیکھا، جو کرسی پکڑے کھڑی تھی۔ وہ طنزاً ہنسا اور باہر نکل گیا۔ وہ سر جھٹک کر کرسی لے کر باہر گئی۔ نہ جانے کس احمق نے کہا تھا کہ عالی صاحب سے کوئی کام کہو۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ میاں صاحب، میں سوچ رہی ہوں کہ نئے گھر میں آ گئے ہیں اور اللہ کا کرم ہے سیٹ بھی ہو گیا ہے، تو کیوں نہ قرآن خوانی کرواؤں؟ رقیہ بیگم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ہوں ٹھیک ہے، کرا لو۔ وقار صاحب مصروف انداز میں گویا ہوئے۔ کب کرواؤں؟ وہ اب بھی متوجہ تھی۔ بھئی جب آپ کا دل چاہے۔ وہ ہاتھ سے پودے کے پتے جانچ رہے تھے۔ کل جمعہ ہے، مبارک دن ہے، کل ٹھیک رہے گا، ہے نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ جواب مختصر تھا۔ ودیع رات کے برتن دھو کر خشک کر رہی تھی جب رقیہ بیگم وارد ہوئی۔ اے لڑکی، وہ ڈر گئی آواز پر۔ جی مامی، وہ بمشکل بول پائی۔ کل قرآن خوانی ہے، تیاری رکھنا، برتن اور چادریں نکال کر صاف کر کے رکھ لینا۔ جی مامی۔ وہ دوبارہ مصروف ہو گئی۔ آج صبح سے وہ کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ قرآن خوانی کا ٹائم ظہر کے بعد تھا اور ذکیہ بیگم بچوں کے ہمراہ 11 بجے پہنچ گئی تھی۔ ارے آپا، مبارک ہو، بڑی مبارک ہو نئے گھر کی، وہ گلے ملتے ہوئے بولی۔ خیر مبارک۔ رقیہ بیگم نے بھی اپنی بہن سے مل کر خوش ہوئی۔ ان کے پاس ان کے میکے کے نام پر بہن کا ہی تو رشتہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کا بھائی اپنے بیوی بچوں سمیت کویت چلا گیا تھا اور کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی کہ بہنیں ہیں کہ نہیں، بس دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کا میکا آباد کر رکھا تھا۔ مبارک ہو خالہ۔ شمائلہ بھی آگے بڑھی۔ جیتی رہے میری بچی، انہوں نے پیار دیا۔ ارے نائلہ اور رضوان کہاں ہیں؟ رقیہ بیگم کو ان کے 2 بچے نہیں دکھے تو پوچھنے لگی۔ ارے ساتھ ہی تو تھے، نہ جانے کہاں دفان ہو گئے۔ ذکیہ بیگم اپنا برقع اتار کر بولی۔ لو، نائلہ تو آ گئی۔ شمائلہ نے نائلہ کو دیکھ کر کہا۔ سلام خالہ۔ وہ پیار لینے کو بڑھی۔ خوش رہے میری بچی، انہوں نے پیار دیا۔ رضوان کہاں ہے نائلہ؟ شہلا نے بھائی سے متعلق دریافت کیا۔ ارے وہ رکشے والے سے جھگڑا کر رہا ہے، اور کہاں جائے گا وہ؟ نائلہ نے ایک جھٹکے سے اپنے بال کندھے سے پیچھے کیے۔ ہائے مولا، ایک تو یہ لڑکا بھی نہ۔ ذکیہ بیگم دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہائے آپا، یہ گرمی تو جان نکال دے گی۔ نی شمائلہ، پنکھا تیز کرنی، وہ شمائلہ کو بولی، جو ہاتھوں سے ہوا لینے میں مصروف تھی۔ اچھا کرتی ہوں۔ وہ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی۔ اے ودیع، کدھر ہے تو؟ ذکیہ، اور بچوں کے لیے کچھ ٹھنڈا پانی لاؤ۔ اس کی آواز نہ پا کر انہوں نے دوبارہ پکارا، مگر جواب ندارد تھا۔ وہ پورش کو دھو رہی تھی جب رضوان اندر داخل ہوا۔ رضوان ولی سے سال بڑا تھا اور شکل ہی سے آوارہ لگتا تھا۔ منہ میں پان دبائے، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے، عجیب گنڈوں والا حلیہ ہوتا تھا اس کا۔
क्या कर रही हो सोहनी? वो उसके सर पे पहुँच कर बोला, तो वो एकदम गीले फर्श पर फिसली और धड़ाम से गिरी, जबकि मुकाबिल दाँत निकाल रहा था। गिरने की वजह से उनका दुपट्टा भी आधा फर्श पर गिरा और गीला हो गया, जबकि कपड़े भी गीले हो गए। बड़ी सोहनी लग रही है तू, वो खबासत से बोला तो उसकी आंखों से टपकती है हवस को देखकर वो एकदम घबरा गई। कौन यहाँ है? नायला दरवाजे पर खड़ी होकर बोली। अंदर आ और शरबत बना। पता नहीं कि मेहमान आए हैं। नायला उसे डांट कर अंदर चली गई, जबकि उसने भी अंदर जाने में आफियत ही समझी। फारिग होकर अभी वो बाहर निकल रही थी जब जकिया बेगम रुकैया से कह रही थी, हाय आपा देख जरा, मेरा तो सर दर्द हो रहा है। आज ऐनक घर ही भूल आई। उसके बगैर ही सिपारा पड़ा है ना, जरा चाय ही पिलवा दे। वो अपने हाथ से सर को दबाते हुए बोली। हाँ खाला, मेरी भी कमर में दर्द है। शुमाइला ने फट अपना दुखड़ा रो दिया। भाई चाय तो मुझे भी चाहिए। आली कहाँ पीछे रहने वाला है। वदिया का थकन से बुरा हाल था। मेहमानों की खातिर तवाज़ो किए अभी उसे आधा घंटा ही गुजरा होगा, तभी तो खाला ने चाय पी थी। और अब दोबारा, है लड़की, खड़ी खड़ी क्या कर रही है? सुना है ना कि मेरी बहन के सर में दर्द है, चल जा सबके लिए चाय बना। वो मुंह लटकाकर किचन की जानी पड़ी। और हाँ, जरा मीठा खुले दिल से डालियो, कंजूसी ना करना। पहले तो चाय में बस चीनी नाम को थी। पीछे से जकिया बेगम की आवाज आई। वदिया की आंख से आंसू टपक पड़ा। तुम्हारा एडमिशन हो गया आली? शुमाइला आली के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली। हाँ हो गया, पिछला स्कूल तो बहुत दूर हो गया है, इसलिए यहाँ करीब ही एडमिशन ले लिया। और वदिया का नायला ने सवाल किया। नहीं अभी नहीं, मेरा स्कूल सिर्फ लड़कों का है, वो बेपरवाही से बोला। और वली आपका कॉलेज कैसा जा रहा है? शुमाइला चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट सजाकर बोली। अच्छा चल रहा है, बाइक है तो सुकून है, वरना मेरा कॉलेज तो बहुत ही दूर था। बंदा रोज कॉलेज बदलने से रहा, इसलिए अब्बू ने बाइक ले दी है। सच्ची? वो जो बाहर बाइक खड़ी है वो आपकी है? शुमाइला ने दोनों हाथों से ताली बजाकर बोली। तो और क्या, भाई की ही तो है वो बाइक। आली मुतवज्जो हुआ। तो फिर बाइक की खुशी में कुछ खिलाए ना, वो जिद करके बोली। हाँ जरूर खिलाऊंगा, फिर अभी नहीं। वली दामन बचा गया। कितने कंजूस हैं आप। शुमाइला ने शक्ल बिगाड़ी। वदिया चाय लेकर आई। खाला चाय, वो ट्रे जकिया के सामने करके बोली। हाँ। उन्होंने चाय उठाकर एक नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर डाली। वदिया लड़कपन से आहिस्ता आहिस्ता जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। रंग तो वैसे ही साफ था, अब नुकूश भी तीखे हो रहे थे, और सोने पर सुहागा काम करके जिस्म भी मुतनासिब था। उसके मुकाबले में उनकी अपनी बेटियां, खास करके नायला का रंग जरा दबता था, जबकि शमाइला का फिर भी साफ था। और आराम तलबी से दोनों के जिस्म फरबही मायल थे। ज़किया बेगम की ख्वाहिश थी कि उनकी दोनों बेटियां रुकैया की बहू बन जाती, मगर वदिया खतरे की घंटी बनकर हमेशा उनके कान में बजती रहती। वो हर मुमकिन कोशिश करती थी उसे दबाने की, बेटियों के मुकाबले में, और उसके खिलाफ रुकैया बेगम के कान भरना तो जैसे उनका मिशन था। आली से तो कोई खतरा नहीं था, वो तो वैसे ही उससे खार खाता था, मगर वली का झुकाव वदिया की तरफ उन्हें खौलता था। इसलिए उन्होंने शुमाइला को समझा दिया था कि क्या करना है, और वो भी पूरी दिलजमई से अपने काम में मसरूफ थी। ए ज़किया, क्या सोच रही हो तुम? रुकैया बेगम ने उनका कंधा हिलाकर कहा। और चाय ठंडी कर दें? लो भला, अरे शुमाइला चाय गरम कर दें? ज़किया बेगम ने चाय का कप थमा दिया, जिसे उसने नाक चढ़ाकर पकड़ लिया, जबकि वदिया न जाने कब की चली गई थी। आपा, आपने इस लड़की को स्कूल में दाखिल कराना है? हाँ भई, इसके मामू ने कहा है कम से कम बीए तो कराना है इसे। अगर आगे भी पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। हाय हाय, इस बला को पढ़ा कर क्या करना है? जितनी जल्दी इस घर से निकाल दो उतना ही अच्छा है। बड़ी मनहूस है ये, पहले माँ बाप को निगल गई, फिर तुम्हारी सास को भी निगल गई। अल्लाह तौबा, वो दोनों हाथ कानों को लगाकर बोली। कह तो ठीक रही हो, मगर उसके मामू। हाँ ये तो है। चलो बताओ कौन से स्कूल में करा रही हो एडमिशन? किसी सस्ते से स्कूल में कराना। आली पूरी तवज्जो से गुफ्तगू सुन रहा था, जबकि बाकी टीवी देखने में मसरूफ थे। यहाँ से कुछ दूर ही एक बड़ा प्राइवेट स्कूल है, वकार उसका एडमिशन वहीं करा रहे हैं। बस उन्हें उसे पढ़ाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना। उन्होंने जैसे कोई राज की बात बताई। हाय आपा, इतना दूर स्कूल, फिर जवान लड़की आएगी जाएगी कैसे? सुबह ये छोड़ देंगे और वापसी पर वली ले आएगा। टन 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 घंटियां बजने लगी। अरे आपा, ये मनहूस लड़की अगर वली के साथ आएगी तो कहीं वली को कुछ। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। हाय हाय, अल्लाह ना करे मेरे बेटे को कुछ हो। चलो कोई वैन वगैरह लगवा देंगे। उन्होंने एक और हल पेश किया। हाय रे आपा, वैन का खर्चा पता है क्या है? मेरी सुमाइला ने लगवाई थी एक बार। अल्लाह तौबा, महीने का बजट ही खराब हो गया था। पता है ना कितनी महंगाई हो गई है आजकल। वो थोड़ी पर हाथ रख कर बोली। ठीक कह रही हो, फिर बताओ क्या करूं?
وہ انہیں سے مشورہ مانگنے لگی۔ وہی تو میں کہتی ہوں، ابھی میں نے تمہارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی ایک گورنمنٹ اسکول دیکھا ہے، اسی میں داخل کروا دو اور کہہ دینا کہ پیدل آیا جایا کرو۔ خرچہ بھی بچ جائے گا اور بچہ بھی محنت سے بچ جائے گا اور وقار بھی کچھ کہہ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے قصہ ہی ختم کر دیا اور رقیہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں، جبکہ عالی کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ اب مزہ آئے گا جب گھوڑا اسکول میں پڑھے گی۔ وہ سر جھٹک کر ٹی وی پر کوئی فلم دیکھنے لگا۔ بڑی بحث کے بعد آخر وقار صاحب نے ہار مان لی اور ودیعہ کا ایڈمیشن گورنمنٹ اسکول میں کرا دیا۔ ودیعہ کا تو مہینے میں دماغ گھوم گیا، ایک تو وہاں پر ٹیچرز ندارد، اوپر سے کوئی ٹیوشن بھی نہیں۔ وہ لاؤنج میں کتابیں کھول کر بیٹھی تھی، پاس ہی عالی بھی کام کر رہا تھا اور رقیہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ رقیہ بیگم چائے ہی پلا دیں، وقار صاحب کمرے سے برآمد ہوئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بولے۔ انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ خوشی خوشی اٹھ گئیں۔ ودیعہ کبھی ایک کتاب کھولتی، کبھی دوسری کتاب کھولتی۔ اس نے سائنس لے رکھی تھی، اب اسے پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ویسے تو وہ پڑھائی میں نارمل تھی، مگر اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وقار صاحب اس کے حرکات و سکنات کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے ودیعہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رونا آ گیا۔ ماموں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ وہ ماموں، ٹیچر 3 دن سے نہیں آ رہی تھی، آج آئیں تو پورے چیپٹر کا کل ٹیسٹ کہہ دیا، اوپر سے پڑھایا بھی نہیں ہے انہوں نے۔ اب میں ٹیسٹ کیسے دوں گی؟ مسئلہ تو مشکل ہے مگر حل آسان ہے، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولے۔ عالی کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ بیٹا تم ولی اور عالی سے ہیلپ لے لو اور تھوڑا بہت تو میں بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ مگر ماموں، ولی بھائی کا تو اپنا بھی اتنا کام ہے۔ وہ خطرے کے پیش نظر عالی کو نظر انداز کر گئی۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو عالی کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ تو بیٹا کیا ہوا؟ عالی ہے نا، اور ویسے بھی اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس کی دہرائی ہو جائے گی۔ مگر ماموں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ چلو عالی، اسے یہ چیپٹر سمجھاؤ۔ انہوں نے عالی کو کہا تو وہ ودیعہ کو گھورنے لگا جیسے کچا چبا جائے گا۔ جی پاپا، وہ دانت پیس کر بولا، جبکہ ودیعہ کا اپنا حل خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، اسے لگا جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے قدم اور تیز کر دیے اور گھر پہنچ کر شکر ادا کیا۔ ابھی اندر ہی قدم رکھے تھے کہ رضوان سے ٹکراؤ ہو گیا۔ کدھر سے آ رہی ہیں آپ؟ جادوگر حسینہ وحشیانہ نظروں سے اس کا سر سے پاؤں تک کا جائزہ لیا۔ ایسے دیکھے جانے پر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ رضوان کو اگنور کر کے نکل رہی تھی کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی کچھ وقت ہمیں بھی دے دو۔ جانے من وہ بے تکا ہنسا۔ چھوڑو مجھے، ودیعہ نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ بھائی ہم تو نہیں چھوڑ رہے تم کو، حسینہ ہمت ہے تو چھڑوا لو۔ پان سے بھرا منہ اور اس سے نکلتی لالیاں، وہ عجیب خبیث انسان لگ رہا تھا۔ چھوڑو، اس نے چھڑوانے کی پوری کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی۔ اے لڑکی، کیا کر رہی ہے وہاں؟ رقیہ بیگم نے ہال کے دروازے سے باہر نکل کر کہا، جبکہ پودے کی وجہ سے رضوان ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ مامی یہ رضوان، اس نے گھبرا کر اتنا ہی کہا تھا کہ رضوان نے فوراً بازو چھوڑ دیا۔ دوپہر کی دھوپ میں وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ چل اندر آ، رقیہ بیگم نے غصے سے کہا، جبکہ رضوان مین گیٹ کراس کر گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی کلائی دھو ڈالی مگر اسے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا میں مامی کو بتا دوں؟ اس نے 10ویں دفعہ خود سے سوال کیا۔ کیا فائدہ، الٹا مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی اور کوئی یقین بھی نہیں کرے گا۔ اس نے خود سے سوال کر کے خود ہی جواب بھی دے دیا۔ ودیعہ کدھر مر گئی ہے؟ روٹیاں پکا رہی ہے کہ پائے رکھتی ہیں؟ عالی کو بھوک لگ رہی ہے، جلدی کر۔ رقیہ بیگم نے اسے خیالوں سے نکالا۔ جی مامی، بس لا رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی توے سے روٹیاں اتارنے لگی۔ ولی بھائی، آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں گے؟ مجھے فزکس کے نیومیریکل کرنے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہوئے ولی سے بولی۔ سوری ودیعہ، میرے خود ایگزامز چل رہے ہیں، ورنہ ضرور سمجھا دیتا۔ تم ایسا کرو کہ عالی سے سمجھ لو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بہانہ بنا دیتی مگر مجبوری تھی، کل ٹیسٹ تھا اور وہ مس کلثوم کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ پہلے ہی اس کے ٹیسٹ رقیہ بیگم کے خاندان کے نام ہو چکے تھے اور یہ مس کی طرف سے وارننگ تھی کہ اگر یہ والا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو ودیعہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ سو ناچار اس نے عالی سے پوچھا، آپ کرا دیں گے؟ عالی نے ایک نظر اس کے صحیح چہرے پر ڈالی، اس پر التجا تھی، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ ابھی 3 بجے ہیں، ابھی میں کھانا کھا کر سوؤں گا، تو ایسا کرنا 5 بجے آ کر مجھے اٹھا دینا اور چائے کا کپ لے کر آنا۔ وہ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولا، جی۔ اس نے اتنا ہی کہا جبکہ دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ گھڑی کی سوئی کی طرح ٹھیک 5 بجے اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے وہی مخصوص سی بدبو آئی جو پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ آئی تھی۔ اس نے عالی کو آواز دی، تیسری آواز پر وہ اٹھ گیا۔ بھائی چائے۔ وہ چھوٹی میز پر چائے رکھ کر پردے ہٹانے لگی۔
کھڑکی کھولی تو کچھ دیر بعد وہ بدبو قدرے کم ہو گئی۔ علی نے واقعی اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ بار بار اسے کوئی فون کر رہا تھا، وہ کاٹ رہا تھا۔ آخر اس نے اٹھا لیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ ہاں آ جاؤں گا۔ بھائی کہہ دیا نا بس۔ اس نے چڑ کر فون بند کیا۔ تمہارا ہو گیا کیا؟ اس نے ودیعہ سے سوال کیا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ تو جاؤ، میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ وہ کہہ کر اٹھا اور واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ پاپا مجھے جانا ہے، علی وقار صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر بولا۔ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پر پاپا مسئلہ کیا ہے؟ میں آخر کیوں نہیں جا سکتا؟ میرے سارے فرینڈ جا رہے ہیں۔ وہ چڑ گیا۔ تم اگر اسی شہر میں پکنک کا کوئی پروگرام بناتے تو ٹھیک تھا، مگر شہر سے باہر، وہ بھی ہفتے کے لیے، ہرگز نہیں۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ خواہ مخواہ ہی مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلے۔ میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جاؤں گا بس۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ جانے بھی دیں، ماشاء اللہ بڑا ہو گیا ہے وہ اب۔ رقیہ بیگم نے بھی لاڈلے بیٹے کی طرفداری کی۔ میں نے کہہ دیا بس، کوئی بحث نہیں کرے گا، سمجھے سب؟ وہ غصے میں کہہ کر نکل گئے۔ ہوں۔ علی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مار کر چیزیں گرا دی اور دندناتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ ودیعہ دم سادے اس کے غصے کو بس دیکھتی رہی۔ جبکہ رقیہ بیگم کو ایک تو چیزوں کا، دوسرا بیٹے کا افسوس تھا۔ کچھ دنوں سے علی کی حرکات و سکنات مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھر میں دیر سے آتا اور اب وہ پہلے کی طرح پڑھتا بھی نہیں تھا، بس گھر آتا اور کمرے میں گھس جاتا۔ ودیعہ جب بھی کمرے میں جاتی وہی بدبو سے پورا کمرہ بھرا ہوتا، اور اب تو وہ بدبو اور بھی بڑھ گئی تھی، مگر وہ نظر انداز کر جاتی۔ اسے پھر لگا کہ کوئی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ سنسان گلی تھی اور اپریل کا مہینہ تھا۔ وہ اپنا رول نمبر لینے اسکول گئی تھی۔ اب واپسی پر حمیرہ بھی نہیں تھی۔ اس نے قدم تیز کر دیے، مگر اچانک سے اس کے سامنے ایک لڑکا آ گیا۔ اس نے جلدی سے اس کی طرف ایک خط بڑھایا اور مسکرا کر چلا گیا، جبکہ وہ حواس باختہ کھڑی تھی۔ علی گلی کے کنارے کھڑے ہو کر یہ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ گھر کے اندر آئی۔ وہ ابھی گراج میں تھی کہ علی نے اسے دبوچ لیا۔ کہاں سے آئی ہو؟ لہجہ تفتیش کرنے والا تھا۔ وہ میں اسکول گئی تھی رول نمبر سلپ لینے۔ اس نے تھوک نگلا۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں وہ خود بھی پیلی ہو رہی تھی، جبکہ پسینہ چہرے پر بہہ نکلا۔ اچھا، اسکول گئی تھی کہ اپنے عاشقوں سے ملنے؟ ہتک آمیز رویہ تھا۔ واہ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بمشکل سر اٹھا کر کہا۔ بڑی لاڈلی بنی رہتی ہو نا تم پاپا کی؟ ہوں، انہیں کیا پتا محترمہ کیا گل کھلا رہی ہیں۔ ودیعہ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ اتنی توہین! یہ کیا ہے؟ اس نے خط کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ، لو لیٹر! خط اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے بولا۔ ہاتھ میں لیٹر ہے؟ وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جانتی؟ ودیعہ کے پاس تو اپنی صفائی میں کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں خود اس لڑکے سے یہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا چلو تم اندر، میں مما کو بھی بتا دوں کہ ودیعہ صاحبہ کیا کرتوت دکھا رہی ہیں۔ میں اسے نہیں جانتی بھائی، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، اور وہ کون تھا، خدا کی قسم۔ وہ رونے لگی۔ یہ سب تم مما کو کہنا، سمجھے؟ وہ خط لے کر اندر چلا گیا، جبکہ ودیعہ کو لگا کہ قیامت آ گئی ہو۔ وہ مردہ جسم سے اندر داخل ہوئی۔ ولی رقیہ بیگم دونوں ہی اندر تھے۔ آج ولی بھی خدا کی طرف سے جلدی آ گیا تھا اور علی گھر پر ہی تھا۔ مما دیکھیں پاپا کی لاڈلی کیا گل کھلا رہی ہے، وہ تنزن ایسا کیا کیا ہے اس منحوس نے؟ اب وہ بھی پریشان ہو گئی۔ یہ محترمہ عشق کی پتنگیں اڑا رہی ہیں۔ اس نے لیٹر ہوا میں لہرایا، جبکہ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سر اس نے ایسے جھکایا ہوا تھا جیسے ساری کی ساری غلطی اسی کی ہو۔ او بھائی، آپ بھی آ جائیں، اس نے ولی کو آواز دی۔ ولی کا نام سن کر ودیعہ کا چہرہ اور بھی تاریک ہو گیا۔ یعنی وہ ایک ہی تو تھا جو اس کے ساتھ بہتر تھا، اب وہ بھی نہیں رہے گا؟ کیا ہوا ہے بھائی؟ ولی بھی نیچے آ گیا۔ آئیے نا، آپ کو بھی کارنامہ دکھاؤں، بلکہ سناؤں۔ علی مزے لے لے کر بتا رہا تھا۔ ولی بھائی، مجھے نہیں پتا کہ کون تھا، میں نہیں جانتی کہ اس پیپر میں کیا ہے۔ وہ ولی کو دیکھ کر صفائیاں دینے لگی، جبکہ ولی حیران و پریشان اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تو سنیں۔ علی نے پیپر کھولا۔ مائی ڈیئر، علی کی آواز گونجی، آپ مجھے نہیں جانتی، مگر میں کافی عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ودیعہ کو لگا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ مجھے آپ اچھی لگنے لگی، اس لیے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نا امید نہیں کریں گی اور اپنی دوستی سے فیض یاب کریں گی۔ فقط آپ کا، اس نے آپ کا پر زور دیا، اسامہ۔ واہ واہ، کیا بات ہے ودیعہ بی بی۔ علی نے خط بند کیا۔ ہائے اللہ، اب یہ دیکھنا رہ گیا تھا۔ رقیہ بیگم نے سر پیٹ لیا۔ اب تو پتنگیں چڑھائے گی عشق کی۔ وہ غصے سے اٹھی اور دو تین ہاتھ اس کے چہرے پر جڑ دیے۔ اس کے روئی جیسے گال دہکنے لگے۔ مامی، میرا یقین کریں کہ میں نہیں جانتی اسے، مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ ودیعہ منمنائی۔
आने दे अपने मामू को, उन्हें भी तो पता चले कि क्या गुल खिला रही है लाडली। वो उसे धक्का देकर चली गई और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। वली भी खामोशी से चला गया, जबकि आली सामने वाले सोफ़े पर बैठकर हँसने लगा। उसे यूँ ऐसे बेबस देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। आज पता चलेगा पापा को कि तुम्हें जो इतना सर पर चढ़ा रहे थे ना, वो अब उन्हें एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। हमेशा उन्होंने मुझ पर तुम्हें तरजीह दी है, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वदिया ने सर उठाकर उसे देखा। खून रंग आंखें हो रही थी और वो हिचकियों से रो रही थी। लाल बबू का चेहरा नाकाबिले हद तक हसीन लग रही थी। किचन सानिया तक तो आली भी उसे देखता रह गया। आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे मार पिटवा कर? वो बमुश्किल हिचकियों के दरमियान बोली। एक पल को तो आली का दिल भी पिघला, मगर अगले लम्हे वो संभल गया। हाँ, बड़ा मजा आता है। शुरू ही तुमसे मेरे साथ बुरा करती शुरू ही से तुम मेरे साथ बुरा करती आई हो। पहले तुम्हारी वजह से मेरा कुत्ता मर गया, फिर मेरे सारे खिलौने तुम्हें मिल गए। पापा मुझसे ज़्यादा तुम्हें तरजीह देते हैं। मेरे हिस्से का प्यार भी तुम्हें मिला है। मुझे अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करने की आदत नहीं है और तुमने छीन ली है। उसने भड़ास निकाली। वदिया खामोश हो गई। जबकि वो चला गया, शाम को रुकैया बेगम ने एक की चार करके वक़ार साहब को सुनाई। उन्होंने वदिया को बुलाया। ये ख़त तुम्हें किसने दिया? मुझे नहीं पता मामू, मैं उसे नहीं जानती, वो सर झुकाकर बोली। पहले कितनी दफ़ा मिल चुकी हूँ उससे, मैंने उसे कभी नहीं देखा मामू। उसकी आंखों में आंसू थे। वली और आली भी आ गए। पापा, इस खत के मज़मून से लगता है कि वाक़ई वदिया उसे नहीं जानती, वली बोला। गहरी सोच में थे, जबकि आली गैर मामूली तौर पर चुप। वक़ार साहब उठे और वदिया की तरफ बढ़े। वदिया को लगा जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से सरक रही हो। अब मामू मुझे मारेंगे, मामी की तरह, उसने सोचा और ज़ोर से आँखें बंद कर लीं। वक़ार साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो मेरी बच्ची। मुझे किसी और का तो पता नहीं, मगर अपनी तरबियत पर भरोसा है। उन्होंने सर थपथपाया। वदिया ने मशकूर नज़रों से सर उठाया, जबकि आली को सारी प्लानिंग अकारत होती हुई महसूस हुई। रुकैया बेगम का मुँह तो खुला का खुला ही रह गया, जबकि वली ने भी उसके सर पर हाथ फेरा। आली गुस्से से कमरे में चक्कर लगा रहा था। इतनी मेहनत से सारी सारी प्लानिंग की थी, मगर सब किए किराए पर पानी फिर गया। फ़ोन की बीप ने उसके कदमों के इर्तियाज को ख़त्म किया। हाँ यार उसामा, कहाँ यार, सारा गेम ही उलट हो गया। मैंने सोचा था कि पापा और कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 थप्पड़ तो मार देंगे, मगर पापा ने तो उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसा है, उसने गारे से कहा। चल छोड़ यार, वैसे थैंक्स, तूने मेरी मदद की। चल बाद में मिलता हूँ तुझे, ओके? साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। अभी वो पलटा ही था कि सामने वदिया बेयकीनी से खड़ी थी। आप मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि आपने ये सब किया? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आली इस हद तक जा सकता है। बचपन में तो ठीक था, वो उसे छोटी-मोटी गड़बड़ करके मार या फिर डाँट पिटवा देता। मगर अब उसने उसकी इज़्ज़त के साथ खेला था। अगर मामू उस पर यकीन ना करते तो वो उससे आगे ना सोच पाई और पलट गई। जबकि आली को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। वदिया अपने कमरे में आकर खूब रोई। उसका दिल किया कि मामू को बता दे, फिर ये सोचकर रुक गई कि मामू का आली के ऊपर से एतबार ना उठ जाए, ये सोचकर खामोश हो गई। आली डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकला कि वदिया ने पापा को ना बता दिया हो, मगर दूसरी तरफ फुनूस खामोशी थी। कुछ दिन के बाद से वदिया ने तकरीबन आली को मुखातिब करना छोड़ ही दिया। अलबत्ता उसके काम करने से इनकार का मतलब अपनी शामत बुलवाना थी। मजबूरन उसे काम करने थे। आली भी उस दिन के बाद से शर्मिंदा-शर्मिंदा रहा। पहले उसने सोचा कि माफ़ी माँग लूँ, फिर अना और ज़िद दरमियान में आ गई, इसलिए खामोश रहा। मैट्रिक के पेपर्स हो गए थे, इसलिए वो चाह रही थी कि साथ वाले ब्लॉक में जो वोकेशनल स्कूल है वहाँ दाखिला ले ले, मगर मसला मामी से इजाज़त लेने का था। क्या करूँ कि मामी इजाज़त दे दें? वो सोच-सोच कर परेशान हो गई। आज उसने बड़ी मेहनत से काम किया और खाना भी बनाया, सोए इत्तेफ़ाक अच्छा बन गया। उसने दोपहर को मेज़ पर खाना चुन लिया। मामी मुझे आपसे बात करनी है, उसने थूक निगल कर कहा। उन्होंने भवें सिकोड़ी। मामी मैंने वोकेशनल स्कूल में दाखिला लेना है। उसने सारी हिम्मत जमा करके कहा। क्या करना है वहाँ दाखिला लेकर? उन्होंने ग्लास में पानी डाला। मामी फारिग हो तो सोचा सिलाई वगैरह सीख लूं, उसने नजर झुकाकर कहा। फारिग कहाँ हो तुम? काम तुम्हारी माँ करेगी? उसने एकदम सर उठाया। काम भी कर दूंगी। इस तरह अपनी माँ की बेइज्जती सुनकर आवाज रुंध गई। जाने दे अम्मी, अच्छा है सिलाई के पैसे बच जाएंगे जो आप दर्जी को देती हैं, आली बोला जो चुप करके सुन रहा था। वदिया को हैरत का शदीद झटका लगा। आज पहली बार वो उसकी तरफदारी कर रहा था। ठीक कहते हो, ये सीना सीख लेगी तो दर्जी वाले पैसे बच जाएंगे। वैसे भी 400 रुपये लेते हैं वो कमबख्त, और महंगाई अलग। ठीक है तुम ले लो दाखिला, उन्होंने वदिया को कहा। जी मामी, वो खुश हो गई। वदिया नोट कर रही थी कि आली दिन ब दिन
मशकूक होता जा रहा है, कॉलेज से आकर कमरे में घुस जाता है और फिर अकेडमी भी नहीं जा रहा, शाम को कहीं निकल जाता है और रात गए वापस आता है। आखिर चक्कर क्या है? वो सोच रही थी मगर अगले पल बोली, मुझे क्या, जो भी करे मेरी बला से, वो कहकर कागज पर कटिंग करने लगी। आज ज़किया बेगम की फैमिली फिर से आई हुई थी और फिर से वदिया का काम 4 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। कहाँ 4-5 लोगों का खाना और कहाँ डबल बंदे। अब उसने मुकम्मल घर सँभाल लिया। सारे काम वो खुद करने लगी थी। बेटा तुम चाय बनाओ तो, मैं ज़रा मगरिब की नमाज़ पढ़ के आता हूँ, वक़ार साहब वदिया को कहकर निकल गए। वदिया जाए नमाज़ पर दुआ माँग कर उठी और जाए नमाज़ लपेटी और दुपट्टा अच्छी तरह शानों पर फैलाकर किचन में चली गई। बाकी सारे लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। अरे वक़ार साहब! किसी शख़्स ने आवाज़ दी। अरे सुहैल साहब कैसे हैं आप? शनासा शख़्स देखकर वक़ार साहब ने मुसाफ़िहा किया। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएँ, आपकी बेगम हॉस्पिटल से आ गईं? जी, वो हैरान हुए। सुहैल साहब वक़ार साहब के दोस्त थे और उन्होंने अकेडमी खोली हुई थी, वहीं पढ़ता था। अरे आली ने बताया था कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज़ हैं, इसलिए वो कुछ दिनों से अकेडमी नहीं आ रहा है। वक़ार साहब शर्मिंदा हुए और गुस्सा अलग। अब वो कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हैं। चलें, आऊँगा मैं भाभी का घर पता करने, अब चलता हूँ। उन्होंने मुसाफ़िया किया और बढ़ गए, जबकि वक़ार साहब का पारा हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में चले गए। सोच-सोच कर उनका खून खौल रहा था। आली इस हद तक हाथ से निकल गया, उन्होंने कभी गौर नहीं किया, मगर अब वो संजीदगी से सोच रहे थे। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों पर गौर करना शुरू कर दिया। आली की ड्रेसिंग पहले जैसी नहीं रही थी और वो रात को भी देर तक बाहर रहता था, यानी वो आवारा हो रहा था। मामू चाय। वदिया ने भाप उड़ाता कप उनके सामने किया। रख दो। वदिया को गैर मामूलीपन का इज़हार हुआ। वो पलटी ही थी, उन्होंने मुखातिब किया, वली की खाला चली गईं क्या? जी मामू, अभी निकली हैं। खाली को बुलाओ, कहाँ है? अपने कमरे में है, बुलाती हूँ। वो निकली। आज यकीनन कुछ हुआ है, मामू गुस्से में है। वो अपनी ही धुन में नॉक किए बगैर दाखिल हो गई। वो आपको मामू बुला रहे हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि उसे शॉक लगा। आली एकदम डर कर पलटा और उसके हाथों में सिगरेट थी। आली वदिया को देखकर साकिन हो गया। वो संभली, मामू बुला रहे हैं कहकर पलट गई। जल्दी-जल्दी 2-2 सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे आई, जैसे पीछे आग लगी हो। मामू लाउंज में टहल रहे थे, जबकि रुकैया बेगम चीज़ें ठीक कर रही थी। वली वक़ार साहब की हालत का बग़ौर जायज़ा ले रहा था। क्या कर रहा है वो? वक़ार साहब ने वदिया से पूछा। वदिया की सांसें फूल रही थीं, वो खामोश रही और हाथ मरोड़ रही थी। मैंने पूछा क्या कर रहा है वो? वो ऊपर अपने कमरे में आवाज़ गरजी। वो एकदम घबरा के, और मामू को इतने गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। रुकैया बेगम के हाथ भी रुक गए। वो सिगरेट पी रहे थे। उसने बमुश्किल कहा, ओह मेरे खुदा, ये सुनना भी बाकी रह गया था। वक़ार साहब ने सर पकड़ लिया। रुकैया बेगम और वली एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि हो क्या रहा है। पापा, आपने बुलाया? आली नीचे आया। गैर मामूली खामोशी पर वो ठिठका। हाँ, इधर आओ। उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया, जबकि आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना? वो गरजे। आपको किसने कहा है? अम्मी तो यहाँ है। वो निडर बनकर बोला। तुम्हारे टीचर ने। तुमने अकेडमी में झूठ बोला है और छुट्टियां कर रहे हो, ये सच है ना? आवाज और ऊंची हो गई। खाली को खतरे की घंटियों की आवाजें आने लगी। वो वो अब्बू, वो पहली दफा घबराया। और तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू किया? तुम कब से इतने आवारा हो गए हो? तुम्हारे बाप ने कभी सिगरेट नहीं पिया, फिर तुम में ये खराबी कहाँ से आ गई? अब्बू, मैंने कोई सिगरेट नहीं पिया, वो बोला। धड़ाक धड़ाक। वकार साहब ने 2 हाथ उसके मुंह पर जड़ दिए। वो शौक की हालत में देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे मार भी सकते हैं। मुंह से बदबू आ रही है और कह रहा है कि सिगरेट नहीं पिया। धड़ाक, एक और थप्पड़ मारा। अब्बू। वली जल्दी से आगे बढ़ा। रुकैया बेगम ने भी कंधे पर हाथ रखा। रहने दें, जवान बच्चा है, इस पर हाथ उठाएंगे, मैं समझाऊंगी इसे। जबकि वली ने आली को पकड़ा। वदिया थर थर कांप रही थी। क्या समझाओगी? समझाने का वक्त गुजर गया बेगम, तुमने ही इसे सर पर चढ़ाया हुआ है। अब वो रुकैया बेगम पर बरस रहे थे। वली, ले जाओ इसे यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा, उन्होंने वली को कहा और एक नज़र आली पर डाली। उसने अब तक हाथ मुंह पर रखा हुआ था, मगर निदामत का एक आंसू नहीं था। वदिया, अब्बू को पानी पिलाओ। वली जाते हुए वदिया को बोला। वो कहकर किचन में चली गई। आली की ये हालत बुरी सोबत की वजह से हुई थी। नए घर में आने के बाद पुराने दोस्त छूट गए थे। कॉलेज जाने के बाद कुछ बुरे लोगों से आली की दोस्ती हो गई थी। कॉलेज को भी बंक करके निकलते रहते थे। पढ़ाई बस नाम की रह गई थी। पहली दफा ही कोई मुश्किल काम होता है। आली के साथ भी ये हुआ था। शुरू-शुरू में तो झूठ बोलते वक्त उसकी जबान लड़खड़ाती थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता वो लड़खड़ाहट खत्म हो गई और पुख्तगी आ गई। 1-2 दफा उसने रुकैया बेगम के पर्स से भी पैसे चुराए थे और इल्ज़ाम वदिया पर डालकर उसे मार भी पड़वाई थी।
ظاہر ہے رقیہ بیگم اپنے بیٹے پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، بھلا وہ کیسے اس پر شک کر سکتی تھی؟ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے، پیسے بھی چرائے اور ودیعہ سے اپنی ازلی دشمنی بھی نکال لی تھی۔ ودیعہ بیچاری کہتی رہ گئی، مگر یقین کس کو تھا؟ وقار صاحب کو یقیناً بہت دکھ ہوا تھا اپنے بیٹے کی حرکتوں کا، اور اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان سے اپنے بیٹے کو لے کر اتنی بڑی غفلت کیسے ہو گئی تھی۔ کہاں اس کی تربیت میں کمی آ گئی تھی کہ وہ بری راہوں کا مسافر بن گیا تھا؟ مگر پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ شروعات میں ہی ان کو آگاہی ہو گئی تھی، ورنہ اگر کہیں دیر ہو جاتی تو اسے واپس لانا مشکل ہو جاتا۔ مگر ابھی وقت تھا، لہٰذا انہوں نے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ عالی اپنے بیڈ روم پر اوندے منہ پڑا ہوا تھا، بار بار اس کی آنکھوں میں وہی سین چل رہا تھا جب ابو نے اسے تھپڑ مارا۔ غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچانک اسے اپنے سر پر کسی کے شفیق ہاتھ کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ابو آپ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں میں، کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ مسکرائے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وقار صاحب بولے، تمہیں پتہ ہے عالی، آج تم نے مجھے کتنا دکھ دیا ہے، تمہاری حرکت کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی ہے تمہارے استاد کے سامنے، اوپر سے تمہارا سگریٹ والا جھوٹ، مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا، اسی وجہ سے میرا ہاتھ اٹھ گیا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ عالی نے سر اٹھایا تو وقار صاحب کے چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آئی ایم سوری ابو، وہ بہت دقت سے بولا، میری غلطی تھی، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ میں تمہاری سوری اس وقت قبول کروں گا جب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرو گے جس سے مجھ کو شرمندگی ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم جانتے ہو علی، تم اور ولی ہی تو میری زندگی کا محور ہو، تم لوگ ہی میری زندگی کی کمائی ہو، میں نے حلال رزق سے تم لوگوں کو زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی ہے، مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ میری زندگی کی کمائی کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جذب سے بولے۔ عالی بڑھ کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پاپا، اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، آپ کو آئندہ کوئی تکلیف نہ دوں۔ مجھے تم سے یہی امید ہے۔ انہوں نے اس کی کمر سہلائی۔ عالی آہستہ آہستہ اپنی پڑھائی میں سیریس ہو گیا، مگر وقت وہ کافی ضائع کر چکا تھا، اسی وجہ سے اس کے ایف ایس سی میں نمبر تو اچھے آئے، مگر اتنے نہیں کہ اسے انجینئرنگ کالج میں داخلہ ملتا، اور وقار صاحب اسے پرائیویٹ کالجوں میں داخلہ کر دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ اس کی لاکھوں کی فیس دینے سے قاصر تھے، اس لیے اس نے آگے کامرس جوائن کی۔ ودیعہ کا رزلٹ بھی آیا تھا اور اس کے بھی اچھے نمبرز تھے۔ سوئے اتفاق ودیعہ کے نمبر نائلہ سے زیادہ تھے اور ودیعہ کو حقیقی خوشی اس بات کی تھی۔ پاپا، کیا سوچا ہے آپ نے اس کلموئی کا؟ ذکیہ بیگم رقیہ کے کان میں گھس کر بولیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی میٹرک کر لیا اس نے، اب اسے بیاہ دیں کوئی کلرک وغیرہ دیکھ کر۔ انہوں نے مدعا بیان کیا، ابھی ابھی تو صرف 16 کی ہوئی ہے اور اس کے ماموں ہرگز نہیں مانیں گے۔ رقیہ بیگم تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولی، اور ویسے بھی اب اس نے گھر سنبھال لیا ہے، مجھے بھی سکون ہے، اچھا ہے 2-4 سال اور رہے، اتنے میں اپنے بیٹوں کی دلہنیں لے آؤں گی، اتنی دیر تک تو یہ کام کرے گی اور مجھے بھی زیادہ کام کرنا نہیں پڑے گا۔ رقیہ نے ذکیہ بیگم کو چپ کروا دیا۔ ارے ولی ہمارے پاس بھی بیٹھ جائیں۔ ولی ابھی اندر آیا تھا کہ شمائلہ نے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے کہا، ابھی میں ذرا فریش ہو جاؤں پھر آؤں گا، ولی کہہ کر نکل گیا، جبکہ شمائلہ کا چہرہ بجھ گیا۔ ودیعہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نی کڑیے، پانی پیا دے، میں نو ذرا، ذکیہ بیگم نے کہا۔ جی خالہ، وہ کہہ کر اٹھی اور اس کے پیچھے ہی رضوان بھی اٹھا۔ وہ کولر سے پانی بھر کر پلٹی ہی تھی کہ رضوان کو بالکل اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر ڈر کے مارے گلاس چھلک گیا۔ کچھ چاہیے تھا؟ وہ تھوک نکل کر اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر بولی۔ ہاں تم، وہ بے باکی سے بولا، پھر ہنسنے لگا۔ ودیعہ کو اس کی ہنسی زہر لگی۔ مجھے جانے دے، راستہ چھوڑے، اگر نہ جانے دوں تو؟ وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بولا۔ وہ تھوڑا جھکا اور منہ سے لالی صاف کرتے ہوئے بولا، تو سونی ہے کہ صرف مجھے ہی لگتی ہے، جبکہ آنکھیں عجیب وحشی لگ رہی تھی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے جھکی۔ ودیعہ، ذرا چائے تو پلا دو۔ عالی اچانک داخل ہوا، اس طرح رضوان کو ودیعہ پر جھکا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خوشمگی نگاہوں سے دونوں کو گھورا۔ رضوان کے ہاتھوں سے طوطے چھوٹ گئے۔ وہ میں اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک ودیعہ کے ہاتھ سے گلاس چھین کر بولا، میں پانی لینے آیا تھا، وہ کہہ کر نظریں چرا کر عالی کے بغل سے نکل گیا۔ عالی نے ایک تیز نظر ودیعہ پر ڈالی اور وہ چور بن کر نظریں جھکا گئی۔ رضوان کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ آتے جاتے کوئی نہ کوئی بےہودہ جملہ کس دیتا یا پھر اکیلا پا کر پہنچ جاتا۔ وہ ڈر کر کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، کوئی یقین نہ کرتا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ رضوان ایک نمبر کا آوارہ ہے۔ وقت بہت جلدی گزر رہا تھا۔ وہ انٹر کر کے فارغ ہو گئی تھی اور عالی نے گریجویشن کر لیا تھا۔
वली ने एमबीए करके जॉब शुरू कर दी थी। ज़किया बेगम का आना-जाना बढ़ गया था, खासकर शुमाइला को लेकर आना। शुमाइला बीबी भी अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। वो वली को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो रही थी। अब अक्सर वो दोनों इकट्ठे हँसते हुए, बातें करते हुए पाए जाते थे। "भई आपा, मैं सोच रही हूँ कि शुमाइला को अब ब्याह दूँ।" ज़किया बेगम ने बड़ी ताड़ कर बात करना शुरू हुई। "हाँ, माशाअल्लाह, अब तो बीए किए भी साल होने को आया है। अब सोचा है कि शादी कर दूँ, हालाँकि रिज़वान बड़ा है मगर बेटियाँ तो जल्द ही ब्याही जाती हैं ना?" वो ऐसे बोली जैसे फ़लसफ़ा झाड़ रही हो। "हाँ, सही कह रही हो, अब मैं भी वली का सोच रही हूँ। माशाअल्लाह कमाने लगा है, अब सेहरा सजा दूँ मैं भी। मेरी ख़्वाहिश है कि शुमाइला मेरे घर की बहू बने।" रुकैया बेगम दोनों को देखकर बोली, जहाँ शुमाइला वली की किसी बात पर शर्म के मारे दोहरी हुई जा रही थी। "हाय आपा, सच कह रही हो क्या?" ज़किया बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। "हाँ भई, सच कह रही हूँ। मैं ज़रा इसके अब्बू से भी बात कर लूँ, फिर बाकायदा रस्म से माँगूँगी।" ये बात कहकर तो तुमने दिल खुश कर दिया, ज़किया बेगम। रुकैया बेगम के हाथ पकड़ते हुए बोली, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इतना आसान होगा। भई आगे क्या करना है तुमने आले? चाय पर वक़ार साहब ने पूछा। अब्बू सोच रहा हूँ सीएसएस का पेपर दे दूँ। सोच तो अच्छी है मगर मेहनत बहुत है बेटा इसमें। जानता हूँ अब्बू मगर मुझे यकीन है कि मैं ये कर लूँगा। वो अज़्म से बोला। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम कोशिश ज़रूर करो। उन्होंने कंधा थपथपाया। आली अब पढ़ाई को लेकर बहुत संजीदगी इख्तियार कर चुका था और इसका सबूत उसके ग्रेजुएशन का शानदार रिज़ल्ट था। आज छुट्टी का दिन लिहाजा सभी घर में थे। रुकैया बेगम ने वक़ार साहब से वली और शुमाइला के रिश्ते की बात की। उन्हें ज़किया बेगम का घराना कुछ ख़ास पसंद नहीं था, मगर चूँकि रुकैया बेगम के पास मैके के नाम पर सिर्फ़ एक बहन थी, लिहाज़ा वो ख़ामोश रहते थे। वो जानते थे ज़किया बेगम फ़ितरतन एक लालची औरत हैं और मक्कार भी, इसीलिए उन्होंने दबी-दबी ज़बान में इनकार किया, जिससे रुकैया बेगम नाराज़ हो गईं। भई बुराई क्या है उस बच्चे में? देखी भाली है और वैसे भी ये वली की भी ख्वाहिश है। वो चौंके, क्या वली भी चाहता है? उन्हें यकीन नहीं आया। हाँ तो और क्या? उससे पूछ कर ही तो बात कर रही हूँ। अच्छा वो सोच में पड़ गए। अब्बू आपसे कोई मिलने आया है। आली ने आकर कहा। वो उठ गए। ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो एक बुजुर्ग साथ में एक अधेड़ उम्र मर्द था। उन्होंने फौरन पहचान लिया। ये खालिद के वालिद और भाई था। खालिद वदिया के वालिद थे। आप? इतने अरसे बाद? वक़ार साहब को हैरानी हुई। उन्होंने मुसाफ़िहा किया। आली भी था मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कौन है। हाँ वक़ार, हम आए हैं। जी फ़रमाएँ, मैं आपकी क्या ख़िदमत कर सकता हूँ? वक़ार साहब बैठते हुए बोले, तुम जानते हो, मैं खालिद से नाराज़ था क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी से मेरी नाराज़गी के बावजूद तुम्हारी बहन से शादी की थी। मगर मैं उससे जितना भी नाराज़ रहता बेटा, बेटा तो वो मेरा ही है ना, और वो बहुत जल्द मुझे छोड़कर चला गया। बुज़ुर्ग बोले। आली को सारी बात समझ आ गई, तो अब आप क्या लेने आए हैं? और आपको पता किसने दिया है यहाँ का? वक़ार साहब हैरान थे। हमने तुम्हारे दफ्तर से लिया है, इस बार वो मर्द बोला। बोलने में गाँव का रंग नुमाया था और वैसे भी बुजुर्ग का जुमला बता रहा था कि वो जमींदार वगैरह हैं। हम यहाँ अपनी पोती से मिलने आए हैं, अब तो वो बालिग हो गई होगी ना? उनकी आवाज़ में हैरत है। मेरे खालिद की आखिरी निशानी है, वो कहाँ है? बुलाओ उसको। उनकी आवाज़ रुक गई। वक़ार साहब ने आली को इशारा किया तो वो उठ गया। आपको इतने सालों बाद इस बच्चे की याद आई है? वक़ार साहब की आवाज़ में अफ़सोस था। हाँ वक़ार, मैं वाक़ई शर्मिंदा हूँ। इतने साल तड़पता रहा मगर आने की हिम्मत नहीं की। मगर अब हौसला नहीं रहा इसलिए आ गया हूँ। और एक और बात। वो रुके। वक़ार साहब चौंके। जी, पता नहीं ज़िंदगी साथ दे ना दे। मैंने खालिद के हिस्से की जायदाद उसके औलाद के नाम कर दी है। मेरी वफ़ात के बाद उसे मिल जाएगी। वो बोले जबकि साथ आए मर्द ने अपना पहलू बदला, जैसे उसे ये बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। जी, वक़ार साहब बस इतना ही बोले। आली के पीछे वदिया दाखिल हुई। वो इस बात पर हैरान थी कि आखिर उससे मिलने कौन आया है। बुजुर्ग पर नज़र पड़ते ही उसे अपने बाबा का गुमान गुज़रा। वो हक्का-बक्का देख रही थी। वो बुजुर्ग अपनी छड़ी की मदद से उठे। मेरी बच्ची, उन्होंने बाहें फैलाई। वदिया कभी उनको देखती, कभी मामू को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बेटा, ये तुम्हारे दादा हैं। वो बोले। बुजुर्ग आगे बढ़े और उसका चेहरा थाम लिया। मेरे खालिद की निशानी, मेरी पोती। उन्होंने बढ़कर पहले उसका माथा चूमा, फिर सीने में दबोच लिया और रोने लगे। सीने की गरमाइश से वदिया को लगा कि वो अपने बाप के गले लग गई है। वो भी रोने लगी। आप मेरे दादा हैं, वो बोली। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरा बदनसीब दादा हूँ, जो पहली बार तुझको देख रहा हूँ। वो फूट-फूट कर रोने लगी। वदिया ने हाथ बढ़ाकर उनका चेहरा साफ किया। मत रोएं दादाजी, देखें मैं भी नहीं रो रही। वो अपने आंसू पोंछ कर बोली।
उसने साथ आए मर्द की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? ये तेरे चाचा हैं, दादा बोले। वो बेसाख्तगी से उनकी तरफ बढ़ी। बादल नाख्वास्ता उस मर्द ने वदिया के सर पर हाथ फेरा। कितनी ही देर वो अपने दादा से बात ही करती रही। फिर उसने वादा किया कि वो उनसे मिलने जल्द आएगी। आज वो बेहद खुश थी अपने दादा से मिलकर। उन्होंने वादा किया था कि वो उससे मिलने आते रहेंगे और फोन भी करते रहेंगे। वदिया से मिलने कौन आया था? जैसे ही वकार साहब कमरे में दाखिल हुए, रुकैया बेगम ने पूछा। उसके दादा आए थे। वो बिस्तर पर दराज हुए। हैं भला उन्हें इतने सालों बाद आई है याद इसकी? हाँ, अब जवान हो गई है। जब पालने की बारी आई तो उसका मुंह तक नहीं देखा और आ गए हक जमाने। वो दबा दबा गुस्सा कर रही थी। भाई आखिर को उनका खून है, अब हम मना करने से तो रहे। वो जब चाहें आ सकते हैं उससे मिलने। साथ क्यों नहीं ले जाते अगर याद आ ही गया है कि उनका अपना खून है। उन्हें अब भी गुस्सा था। तुम भी ना बेगम, बस कभी कभी हद कर देती हो। वकार साहब ने गुस्से से करवट बदल ली। हूँ, उन्होंने गर्दन घुमाई। बड़े आए दादा। रुकैया बेगम का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसने आकर बैग उतारा और वॉशरूम में नहाने के लिए घुस गई। अभी निकली ही थी कि आली की आवाज आ रही थी। वदिया नीचे आओ जल्दी। अब क्या मुसीबत है? आज ही टेस्टों से फारिग हुई हूँ। सोचा कि सोऊंगी मगर शायद किस्मत में मेरे सोना लिखा ही नहीं है। वो मुंह बिसूर के नीचे आई। जी भाई, खाना दो मुझे, भूख लगी है। आली टेबल पर बैठ गया। मामी कहाँ है? उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। अम्मी और अब्बू गए हैं फौतगी में, शेखपुरा। जवाब मुख्तसर था। कौन फौत हुआ है? वो कोई अब्बू के कजिन थे, शायद जमाल अंकल। मुझे ठीक से पता नहीं, बस अम्मी ने फोन पर इतना ही बताया है। मेरा ख्याल है जमाल अंकल ही होंगे। वही बीमार थे। उसने खुद से कलाम किया। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहकर किचन में चली गई। तवा रखा और रात वाला सालन निकालकर ओवन में रख दिया। खिड़की से देखा तो काली घटाएं छा रही थीं। हाय अल्लाह, इतना अच्छा मौसम है। मगर चलो छोड़ो, जल्दी से इसे खाना दूं फिर सोऊंगी। वो जल्दी जल्दी पेड़े बनाने लगी। अल्लाह, पहले एप्रन पहन लूं वरना कपड़ों पर आटा लग जाएगा। उसने दुपट्टा दरवाजे पर डाला और एप्रन पहन लिया। हद है, इतनी देर लगती है। भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। और महारानी साहिबा से रोटी जल्दी नहीं बन रही। आली कहता हुआ किचन में आ गया। भाई बना रही हूं ना। वो एक हाथ से माथे पर आए गीले बाल पीछे कर रही थी और दूसरे हाथ से रोटी देख रही थी। आली यकटक उसे देखे जा रहा था। वो पहली बार खुले बालों में देख रहा था उसे। काले घने बाल जो कमर तक थे। सिर्फ एक कैचर में कैद करने की नाकाम कोशिश की थी। बालों से पानी की नन्ही नन्ही बूंदें कमीज में जज्ब हो रही थी। काली घटा बाहर थी और बारिश की बूंदें उसके बालों से हल्के हल्के बरस रही थी। वो ट्रे में रोटी रखकर पलटी तो उसे सामने पाया। उसने ट्रे काउंटर पर रखी और बिजली की तेजी से दुपट्टा पकड़ा। आली ने नजरें चुराई। भाई, मैं ला रही थी ना। इस तरह उसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हुई थी। वो ट्रे लेकर पलट गया। उसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। उसने वली के लिए भी रोटियां पकाई और सोने चल दी। वो सोकर उठी तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। असर नमाज अदा की और किचन में आकर कुछ बनाने का सोचने लगी। आज मामी नहीं है, क्यों ना पकौड़े बना लूं। उसने बड़े दिल से पकौड़े बनाए और इमली की चटनी और चाय का गर्मा गर्म कप लेकर लाउंज के बाहरी सीढ़ियों पर बैठकर बारिश से लुत्फानंदोज होने लगी। हाल ही मेन गेट से बाइक अंदर ले आया था। तेज बरसती बारिश में वो पूरी तरह भीग गया था। जाते नवंबर के दिन थे, इसलिए थोड़ी खुनकी बढ़ रही थी। आछू, आछू, वो 2-3 बार और चीखा और गीले बाजू से नाक को रगड़ डाला। प्लीज मुझे भी चाय दे दो, सर्दी लग रही है। वो कहकर अंदर चला गया। तो किसने कहा था कि इतनी तेज बारिश में घूमे? वो मुंह चिढ़ा कर बोली। वो अक्सर आली के पीछे ही उसे बातें सुनाती थी क्योंकि सामने बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। किचन में चाय बना रही थी जब फोन की घंटी बजी। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। वरिया, मैं काला के यहाँ हूँ। बारिश रुकेगी तो आऊंगा, ठीक है? वली ने खटाक से फोन बंद कर दिया और वो फोन को देखती रह गई। वो आली को चाय देने कमरे में गई। किसका फोन था? वो चेंज कर चुका था और तौलिए से बाल रगड़ रहा था। वली भाई का था। कह रहे थे कि खाला क्या आए और बारिश के थमने पर आएंगे। उसने तफसील से गोश गुजार कर दी। भाई के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगने लग गए हैं खाला क्या? आली बड़बड़ाया। जी, वदिया ने सुनने की भरपूर कोशिश की मगर उसकी आवाज बाहर बारिश की आवाज से मध्यम थी। कुछ नहीं। आछू, लगता है नजला हो गया है। वो नाक टिश्यू से रगड़ कर बोला। ठीक है, तुम जाओ। उसने चाय का कप लिया और वो कमरे से निकल आई। वो इशा पढ़कर फारिग हुई और टीवी देखने लगी। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। आली चादर ओढ़े नीचे आया। अच्छू, अच्छू,
चीखें जोरों पर थी। वो सोफे पर टिक गया। खाना खाएंगे? वदिया ने मुख्तसरन पूछा। नहीं। भाई आ गया? वदिया ने नफी में सर हिलाया। अच्छा। आली ने घड़ी पर नजर डाली तो 9 बज रहे थे। अभी तक नहीं आया? वो बड़बड़ाया। मामू कब आएंगे? वदिया ने पूछा। कल का कह कर गए हैं वो, आली ने बताया और सोफे पर दराज हो गया। प्लीज कोई कंबल वगैरह दे दो, ठंड लग रही है। वो कहकर उठी और अंदर मामू के कमरे से कंबल उठा लाई। आप ऊपर जाकर आराम करें, मैं नीचे बैठी हूँ, वो उसकी हालत देखकर बोली। नाक चीख चीख कर लाल हो रही थी और आंखों से पानी बह रहा था। तुम ठीक कह रही हो, मैं यहाँ पर बेआराम ही रहूंगा। वो बिना किसी बहस के आमादा हो गया। वरिया ने हैरत से देखा, ये पहली दफा था जब आली ने उसकी कोई बात मानी हो। रात के 12 बजे थे और वली अभी तक नहीं आया था। वदिया का नींद के मारे बुरा हाल था। बारिश अब भी वक्फे वक्फे से हो रही थी। उसने किचन में आकर दूध गर्म किया और आली को देने चली आई। उसने नॉक किया मगर जवाब निदारित था। तीसरी बार नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। उसने लाइट जलाई तो वो बेड पर पड़ा था। उसने ग्लास साइड टेबल पर रखा तो उसे लगा कि वो कुछ बड़बड़ा रहा है। उसने कान करीब किया। पानी पानी, आली बोल रहा था जबकि आंखें हुनूस बंद थी। वो पानी ले आई। भाई पानी ले लें। उसने आली को पुकारा। भाई। भाई उठे हैं, वो बोली मगर जवाब निदारित था। आली ने आंखें नहीं खोली। अलबत्ता उसके पपोटे हिल रहे थे। उसने आली का हाथ हिलाया तो उसे लगा कि वो दहक रहा है। उसने जल्दी से उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे झटका लगा। उसे तो बहुत तेज बुखार है। वो बोली। अब क्या करूं? वली भाई भी नहीं है और मामी मामू भी। वदिया के हाथ पांव फूल गए। वो आली का हाथ थामे बैठी थी। पानी, आली बड़बड़ाया। हाँ। हाँ भाई पानी पी लें, वो उसका कंधा हिलाकर बोली। आली ने आंखें बमुश्किल खोली। वदिया। वो बोला। जी भाई पानी लाई हूं। वो थोड़ा आगे झुकी। आली ने कोशिश की मगर नाकाम रहा। वदिया ने सहारा देकर उसका सर उठाया और पानी का गिलास मुंह से लगाया। उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। और लाऊं? वो बोली। आली ने नफी में सर हिलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता वो नूदगी में जा रहा था। वो उठी और फोन करने चल दी। उसने वली के सिर पर कॉल की। चौथी बेल पर फोन उठाया गया। हेलो वली भाई, आप जल्दी घर आ जाएं। उसने घबरा कर बात की। वली सुबह आएगा अब? अच्छा। शुमाइला की आवाज आई मगर वो उससे पहले कि वो कुछ बोलती खटाक से फोन बंद कर दिया गया। किसका फोन था? वली ने पूछा। वदिया का था। पूछ रही थी कब आएंगे। मैंने कह दिया कि अब वो सुबह ही आएंगे। भला ये कोई टाइम है वापसी का? 12:30 बजने को हैं। शुमाइला ने एक अदा से कहा। मैंने ठीक कहा ना? वो आंखें झुकाकर बोली। आप कभी गलत हो सकती हैं क्या? वली ने हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया। वली के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी जबकि शुमाइला ने शर्मा कर नजरें झुका ली। अब क्या करूं? वो हाथ मरोड़ रही थी। उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 12:40 हो रहे थे। वो किचन में आई और दवा ढूंढने लगी। अल्लाह अल्लाह करके उसे बुखार की गोलियां मिली। उसने टोस्ट गर्म किए और आली के कमरे में आ गई। आली भाई। आली भाई, उसने कंधा हिलाया। वो कसमसाया। भाई कुछ खा लें फिर दवा ले लें। वो बोली। मेरा दिल नहीं कर रहा है। अच्छू। वो इतनी जोर से चीखा कि पूरा जिस्म लरज गया। उफ! उसके मुंह से बेसाख्ता आवाज निकली और दूसरे हाथ से उसने सर थाम लिया। दर्द हो रहा है? उसने मासूमियत से पूछा। मैं थर्मामीटर लाती हूँ। वो कहकर उठी जबकि वो उसे जाता देखता रहा। 104 बुखार है आपको भाई, उसने तशवीश से कहा। भाई आप कुछ खा लेना फिर दवा ले लीजिएगा, फिर ही आराम आएगा ना? उसने जिद की। नहीं, आली ने नफी में सर हिलाया। वदिया में न जाने कहाँ से इतनी ताकत आई थी। उसने जबरदस्ती उसे बिठाया बेड से टेक लगाकर और दूध और टोस्ट वाली ट्रे उसके सामने कर दी। चले खाएं, वो हुक्म देकर बोली। अच्छू। 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 आली एकदम चीखा और ट्रे में पड़ा दूध का ग्लास छलक गया। वदिया ने जल्दी से बढ़कर ट्रे संभाली जबकि आली की नाक और आंखें दोनों बुरी तरह बह रही थी। वदिया ने बड़ी मुश्किलों से उसे खाली दूध पीने पर राजी किया और फिर टैबलेट दे दी। उसे दोबारा लिटाकर वो बर्तन समेटकर किचन में आ गई। बर्तन धोकर वो लाउंज में आई। उसने वहां की लाइट्स ऑफ की और अपने कमरे में आ गई। घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 2 बज रहे थे। थकन से उसका बुरा हाल था मगर नींद दूर दूर तक आंखों में नहीं थी। भाई को देख तो लूं, शायद कुछ चाहिए हो। वो खुद कलामी करते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ी। वो बेड के करीब आई तो आली के सू सू करने की आवाजें आ रही थी। वो बहुत बेचैन लग रहा था। उसने माथे पर हाथ रखा तो उसने आंखें खोली। आपको अब भी बहुत तेज बुखार है भाई? उसने परेशानी से कहा। मैं ऐसा करती हूँ, ठंडा पानी और पट्टियां लाती हूँ। वो तीर की तरह कमरे से निकल गई जबकि आली एक दफा फिर गुनूदगी में जा रहा था। वो रात भर उसके सिरहाने बैठी पट्टियां करती रही। पट्टियां करते करते वो सोच रही थी। इस शख्स से बात करने को उसका दिल नहीं करता था
मगर अब वो उसकी इतनी देखभाल क्यों कर रही है? एक चुभन अब भी उसके दिल में थी आली के लिए। फज्र के बाद जाकर कहीं उसका बुखार कम हुआ। थकन से वदिया का बुरा हाल था। वो उठी और नमाज पढ़ी। अभी वो लेटने लगी थी कि ख्याल आया, एक नजर देख लूं फिर सो जाऊंगी। वो दोबारा उसके कमरे में आई तो वो पुरसुकून सो रहा था। शुक्र अल्लाह का, उसने बेइख्तियार शुक्र अदा किया और लाइट ऑफ करके निकल गई। लेटी तो अजीब सा एहसास हो रहा था। वो आली को देखकर कितना घबरा गई थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता घबराहट खत्म हुई तो वो उसे संभालने में कामयाब रही। यही सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। उसकी आंख बेल की कई आवाजों से खुली। क्या घोड़े बेचकर सो रही थी? वली बाइक लेकर अंदर आया। आसमान पर अब भी बादल थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। 12 बज रहे हैं और तुम अब तक सो रही थी? वली को हैरत हुई, क्योंकि वदिया कभी इतनी देर तक नहीं सोई थी। जी मैं सुबह ही सोई थी। क्यों? वो हैरत से बोला। रात आली भाई को बहुत तेज बुखार था और घर पर भी कोई नहीं था, इसलिए सारी रात जागती रही हूँ। तुम मुझे बता देती। मैंने फ़ोन करके कहा था मगर शुमाइला ने कहा कि आप सुबह आएँगे। ओह! वो तुम्हारा फ़ोन था? मुझे लगा शायद किसी दोस्त का फ़ोन है। वली शर्मिंदा हुआ और वो झूठ बोल गया। अब कैसा है? वो वली ने खजालत से कहा। ठीक है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। नाश्ता करेंगे? वदिया ने पूछा। नहीं, मैं करके आया हूँ। खाला नाश्ता किए बगैर आने ही नहीं दे रही थी। वली कहकर ऊपर चला गया, जबकि वदिया अफ़सोस से उसे देखती रही। वदिया नाश्ता करके आली के कमरे में आई। वो अब भी सो रहा था। उसके माथे पर हाथ रखा। काफ़ी कम हो गया है बुखार, वो बोली, आराम करने देती हूँ। उसने कमरे के पर्दे बराबर किए और बाहर निकल आई। वो खाने की तैयारी कर रही थी जब आली चादर लपेटे नीचे आया। वो लाउंज में आकर सोफे पर बैठा। कमजोरी उसके चेहरे से आया थी। अलबत्ता बुखार कम हो गया था और नज़ला जुकाम अब भी वैसा ही था। आच्छू! वो चीखा। चीख की आवाज़ सुनकर वदिया किचन से बाहर आई। आप नीचे आ गए, अभी आपको आराम करना चाहिए था, वो परेशानी से बोली, जबकि वो सिर्फ उसे देख रहा था। पाली को याद था कि रात वदिया थी उसके पास और उसने ही उसका ख्याल रखा था। वैसे उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वदिया उसका ख्याल रखेगी, जबकि वो उसके साथ हमेशा बुरा ही करता रहा है। मगर फिर भी वदिया ने उसका बहुत ख्याल रखा था, जिसके लिए वो वाकई शर्मिंदा था। आप नाश्ता करेंगे? उसके दोबारा कहने पर वो चौंका। हाँ, उसने सर हिलाया। उसने ट्रे उसके सामने रखी। उबला हुआ अंडा था, दूध का ग्लास था और जैम और ब्रेड थी। वो दोबारा किचन में आ गई। कैसा है यार आली? वदिया ने बताया कि तेरी तबीयत खराब है। वली ने भाई से पूछा। ठीक हूँ। उसने वली को देखा। वो नकसक से तैयार था कहीं जाने के लिए। वदिया, मेरा खाना ना बनाना, मैं बाहर खा कर आऊंगा। उसने खड़े खड़े कहा। डॉक्टर के पास जाना है तो ले चलूं तुझे? अब वो आली से मुखातिब हुआ। नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ अब। मुख्तसर जवाब मिला। ओके, मैं चलता हूँ, वो कहकर निकल गया। वो नाश्ता करने लगा तभी फोन की घंटी बजी। आली तो उठ नहीं सकता था, इसलिए वदिया ने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू। जी सब ठीक है। जी वली भाई बाहर हैं और आली भाई नाश्ता कर रहे हैं। जी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कोई बात नहीं। जी ठीक है। जी। उसने फोन बंद कर दिया, जबकि आली इस दौरान उसका बड़ी संजीदगी से जायजा लेता रहा था। वो बड़े तहम्मुल से बात कर रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं बीमार हूँ? छूटते ही सवाल किया। क्या फायदा बताने का? मामी मामू खामखा परेशान हो जाते। वो सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम्हें बताना चाहिए था। उसने ट्रे से हाथ खींच ली। मामी आपसे इतना प्यार करती हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाती और फ़ौरन आ भी नहीं सकती थी। वहाँ भी बारिश की वजह से काफ़ी बुरा हाल है। मामू कह रहे थे कि उन्हें आने में वक़्त लगेगा। वो ट्रे लेकर उठ गए। उसने पानी और दवाई उसके सामने रखी। ये ले लीजिएगा, वो कहकर रुकी नहीं और बेरुखी से चल दी। जबकि आली को यकीन नहीं आ रहा था कि अभी रात में उसने मेरी इतनी तीमारदारी की और अब फिर वो पहले जैसी हो गई है, जो सिर्फ़ उससे ज़रूरतन ही बात करती थी, वरना उसे मुख़ातिब नहीं करती थी। तो फिर आपने क्या सोचा है? रुकैया बेगम ने बिस्तर पर बैठकर सवाल किया। किस बारे में? वक़ार साहब ने अखबार लपेट कर कहा। अरे वली की शादी के बारे में। और किस बारे में? वो बरहम हुई। भई बेगम, अब मैं क्या कहूँ? सब कुछ तो तुमने तय कर रखा है, फिर मुझसे पूछने का फ़ायदा? वो ऐनक उतार कर दराज़ हुए। तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? उनकी बातें खुल गईं। अगर वली और तुम्हारी ये मर्ज़ी है तो ठीक है, आगे अल्लाह बेहतर करे। ठीक है तो फिर कल ही बाकायदा रिश्ता लेकर चलेंगे, वो खुशी-खुशी कहने लगी। वक़ार साहब ने करवट ली। अरे! वदिया किधर दफ़ा हो गई है? रुकैया बेगम ने किचन में झाँका, वो वहाँ भी नहीं थी। पता नहीं ये मनहूस लड़की कहाँ चली गई है। वो सीढ़ियों के पास आकर बोली, वदिया, ओ वदिया, जल्दी नीचे आ। जी मामी, वो तकरीबन दौड़ कर आई। कहाँ मर गई थी मनहूस? तेवर काफ़ी ख़राब थे। वो सफाई कर रही थी मैं ऊपर की। वो हाथ दुपट्टे से साफ करके बोली। वो मेरा सब्ज़ जोड़ा और अपने मामू का जोड़ा निकाल कर इस्त्री कर दे।
ہم نے جانا ہے۔ جی مامی، وہ کہہ کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہیں امی؟ علی داخل ہوا۔ تمہاری خالہ کے یہاں جا رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ولی کا رشتہ شمائلہ کے لیے لے جائیں۔ وہ خوش ہو کر بتا رہی تھی۔ اوہ! علی نے افسوس سے سر ہلایا۔ بھائی کو اور کوئی نہیں ملی تھی جو شمائلہ کو پسند کر لیا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ رقیہ بیگم نے کہا۔ کچھ نہیں، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بھانجی ہمیشہ ڈیرا ڈالنے آ رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں بھائی، مبارک کرے اللہ بھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ لاؤنج سے آتی آوازوں کی طرف اس کا مکمل دھیان تھا۔ لو، اب تو خالہ اور ان کے خاندان کا ڈیرا 24 گھنٹے یہاں ہی ہوگا۔ ولی بھائی بھی بس نہ۔ اس نے سر ہلایا۔ شام کو وقار صاحب اور رقیہ بیگم جب ذکیہ کے گھر گئے تو ان کے سامنے بچھی بچھی جا رہی تھی۔ ارے آپا، تم نے میری آدھی فکر ختم کر دی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ آپ کو تو اعتراض نہیں ہے نا انور صاحب؟ وقار صاحب نے ذکیہ بیگم کے شوہر کو مخاطب کیا، جو مسلسل خاموش تھے۔ لو بھلا، ان کو کیا اعتراض ہوگا؟ گھر بیٹھے بٹھائے اتنا بھلا رشتہ مل رہا ہے۔ ذکیہ بیگم انور صاحب کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ نہیں بھائی صاحب، اعتراض کیسا؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری بیٹی کا نصیب جاگا ہے اور وہ آپ کے گھر کی بہو بنی ہے۔ انور صاحب نے بڑی عاجزی سے کہا۔ ذکیہ بیگم کے مقابلے میں وہ کافی کم یا پھر ضرورت کی حد تک ہی بات کرتے تھے۔ گھر پر ذکیہ بیگم کا راج تھا۔ وہ بھلا مانوس انسان بس خاموش ہی رہتا تھا۔ ارے شمائلہ کو بلاؤ، رقیہ بیگم نے کھڑے رضوان سے کہا۔ ہاں خالہ، بلاتا ہوں۔ وہ آستین سے پان والی لالی صاف کر کے بولا۔ او شمائلہ، ادھر آ، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ وہیں سے ہانکنے لگا۔ بیٹا، اندر سے جا کر لاؤ۔ وقار صاحب کی ناگواریت کو بھانپ کر انور صاحب بولے۔ بلانا ہی ہے نا، یہاں سے بلاؤ یا اندر جا کر کیا فرق پڑتا ہے؟ رضوان ہاتھ نچا کر بولا، جبکہ انور صاحب کو خجالت نے گھیر لیا۔ لو آ گئی شمائلہ، وہ اسے راستہ دے کر بولا۔ سلام خالہ، سلام خالو، وہ دونوں کو سلام کر کے بولی۔ جیتی رہ میری بچی، جیتی رہ، آ ادھر میرے پاس بیٹھ۔ رقیہ بیگم نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی۔ ذکیہ اب سے یہ ہماری بچی ہوئی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر چند بڑے نوٹ رکھ دیے اور سر پر پیار دیا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال پیلا ہوئے جا رہا تھا، البتہ اس نے مٹھی کو زور سے بند کر لیا۔ ہاں آپا، کیوں نہیں؟ ذکیہ بیگم نے کہا۔ اے لو، نائلہ بھی لے آئی چائے۔ نائلہ ٹرے میں چائے اور دوسرے لوازمات لے کر آئی۔ ارے آپا، پہلے تم منہ میٹھا کرو۔ ذکیہ بیگم ایک رسگلہ ان کے منہ میں ڈال کر بولی۔ ہاں تم بھی کر لو۔ رقیہ بیگم نے بھی منہ میٹھا کروایا ذکیہ بیگم کا اور شمائلہ کا۔ ارے بھائی صاحب، آپ بھی لیں۔ انور صاحب پلیٹ وقار صاحب کے آگے کر کے بولے۔ جی شکریہ۔ انہوں نے ایک گلاب جامن اٹھایا۔ ارے ابو، مجھے بھی دو۔ رضوان ندیدوں کی طرف پلیٹ پر جھپٹا۔ انور صاحب نے اسے گھورا مگر وہ نظر انداز کر کے کھانے لگا۔ بھائی صاحب یہ لیں، یہ سموسے میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ ذکیہ بیگم نے بازاری سموسوں کو اپنی بیٹی کی مہارت کہہ کر پلیٹ آگے کرنے لگی۔ نہیں، منہ میٹھا کر لیا، اب بس چائے پیوں گا۔ وقار صاحب نے معذرت کر لی۔ تم تو لو آپا۔ انہوں نے پلیٹ رقیہ بیگم کے آگے کی۔ رقیہ بیگم نے پلیٹ میں ایک سموسہ رکھ لیا۔ وقار صاحب کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں ان کے گھر کا ماحول بالکل نہیں پسند تھا، جہاں صرف عورتوں کی حکمرانی تھی، جو مرد کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ان کے نکلتے ہی نائلہ، رضوان اور شمائلہ چیزوں پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھا رضوان کے ابا، میری عقل مندی کو، کیسے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کروایا ہے۔ ذکیہ بیگم بڑے فخر سے تخت پر پاؤں پھیلا کر بولی۔ ذکیہ، یہ تمہاری عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اوپر والے کا فضل ہے، ہم پر جو بیٹھے بٹھائے رشتہ آ گیا۔ انور صاحب بڑے تحمل سے بولے۔ ارے میں نے اور میری بیٹیوں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں آپا کو شیشے میں اتارنے کے لیے، تمہیں کیا پتا بھلا؟ وہ نخوت سے بولی۔ انور صاحب ایک تعصب بھری نظر ان پر اور پھر اپنے بچوں پر ڈال کر چپ چاپ کمرے سے نکل گئے۔ ان کے بھروسے ہوتے تو ہو گیا تھا رشتہ، وہ بولی۔ لڑکیوں، بس خود ہی کھانا، مجھے نہ دینا، وہ بولی۔ لو اماں، یہ کام بھی ہوا، میرا تو ہو گیا رشتہ۔ شمائلہ پلیٹ ذکیہ کے سامنے کر کے بولی۔ ہاں ہو گیا تیرا رشتہ، اب بس یہ تیرا کام ہی ہے کہ تو اپنی بہن کو اس گھر میں لے جائے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں آپا، مگر پہلے اس منحوس کو نکالیں، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ نائلہ بھی آ گئی۔ ہاں پہلے تو اس منحوس ودیعہ کو نکالیں گے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پلٹ آئے۔ ذکیہ بیگم ایک گلاب جامن منہ میں رکھ کر بولی۔ بس اماں، ایک بار جانے دو، پھر اس کا ایسا جینا حرام کر دوں گی کہ خود ہی چلی جائے گی۔ شمائلہ مستقبل کے منصوبے بنا کر بولی۔ نہیں، تیرا بھائی کدھر گیا ہے؟ ذکیہ بیگم نے رضوان کو نہ پا کر کہا۔ گیا ہوگا کہیں لڑکیاں تاڑنے یا آوازیں کسنے، نائلہ نے ہاتھ گھما کر کہا اور اندر چلی گئی۔ یہ لڑکا بھی نہ بس، اماں اسے کہو کہ اب تو سدھر جائے، محلے سے کتنی شکایتیں آ چکی ہیں اس کی۔
शुमाइला ने फिक्रमंदी से कहा, अरे रहने दे, ये मोहल्ले वाले वैसे ही जलते हैं उससे। ज़किया बेगम ने हस्बे आदत उसकी तरफदारी की। शुमाइला चुप हो गई। वली बेताबी से टहल रहा था, खुशी उसके अंग-अंग से ज़ाहिर हो रही थी। भाई चाय, वदिया ने कप बढ़ाया। बाद में लूँगा, ज़रा अम्मी-अब्बू आ जाएँ। वली बार-बार दरवाज़े को देख रहा था। आली ने वदिया की ट्रे आगे करने पर कप पकड़ लिया। भाई बैठ जाओ, तुम्हारे परेड करने से वो जल्दी नहीं आएँगे। वो मज़ाक उड़ाकर बोला, जब दिल की तमन्ना पूरी हो रही हो ना, तो इंसान को इतनी ही खुशी मिलती है, तुम क्या जानो? वली ने साफ आली का मज़ाक उड़ाया। जी बिल्कुल ठीक फरमाया, अभी तक दिल नहीं लगाया ना हमने, इसीलिए ऐसी खुशी नहीं मिली। वो चाय का सिप लेकर बेइख्तियार वदिया की तरफ देखकर बोला, जो दोनों की गुफ्तगू से अक्सर बेनियाज कुछ सोच रही थी। वदिया को न जाने क्यों इतना दुख हुआ था कि वली की शादी शुमाइला से हो रही है, हालांकि उसने दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी साफ देखी थी। मगर न जाने क्यों वो खुश नहीं थी। वो बचपन ही से वली से काफ़ी अटैच रही थी। अब जब से वो शुमाइला में इन्वॉल्व हुआ था, तब से वो काफ़ी बदल रहा था या शायद उसे महसूस हो रहा था। आली ने चुटकी बजाई, कहाँ गुम हो तुम? आली उसके करीब ही बैठा था। उसने खामोशी से उसकी तरफ देखा और उठ गई। अभी 2 दिन पहले ही तो एक बार फिर आली की वजह से मामी ने उसे कितना डाँटा था, कितना बुरा भला कहा था कि उसने बताया ही नहीं कि आली को इतना तेज़ बुखार था। आली ने उसे जाता देखा और अफ़सोस से गर्दन झुकाकर वो पूरी कोशिश करने लगा था कि अब उसकी वजह से कम से कम अम्मी उसे ना डांटें, मगर फिर भी कुछ न कुछ हो ही जाता था। अम्मी-अब्बू आ गए, वली गाड़ी की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ गया। अम्मी, कैसा रहा? वली ने रुकैया बेगम के दाखिल होते ही बेताबी से पूछा। अरे पगले, अंदर तो आने दे, फिर बताती हूँ, वो खुशी-खुशी बोली। अरे वदिया कहाँ है तू? जल्दी से ये मिठाई प्लेट में डाल कर ला। उन्होंने वदिया को आवाज़ दी। रुकैया बेगम ने वली का माथा चूमा। मुबारक हो तुझे, हम तेरा रिश्ता पक्का कर आए हैं। साथ ही उसका मुंह मीठा किया गया। वली को लगा कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। सच अम्मी, उसकी आवाज़ चहक रही थी। हाँ बरखुरदार, वकार साहब भी अपने बेटे की खुशी देखकर कुछ मुतमईन हुए। लो अब सुकून आ गया तुम्हें भाई। काली उसे साथ लगाकर मुबारकबाद देकर बोला। मुबारक हो भाई, वदिया की मुस्कुराहट फीकी थी। अरे तुमने इतनी मनहूस शक्ल क्यों बनाई हुई है? तुम किस चीज का सोग मना रही हो? रुकैया बेगम उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर मशकूक हुई। कुछ नहीं मामी, बस जरा तबीयत ठीक नहीं है। वो शर्मिंदा हुई। अरे बेटा, ज्यादा तो नहीं खराब तबीयत? वकार साहब फिक्रमंद हुए। अरे नहीं मामू, मैं ठीक हूँ, वो उन्हें तसल्ली देकर बोली। अचानक फोन की आवाज की तरफ सब मुतवज्जो हुए। मैं सुनता हूँ। आली ने बढ़कर रिसीवर थाम लिया। हेलो, जी है, ये ले बात करें। उसने मुख्तसर गुफ्तगू के बाद रिसीवर वदिया की तरफ बढ़ाया। तुम्हारा फोन है। किसका? वो मुश्किल बोल पाई, जबकि रुकैया बेगम के कान खड़े हो गए। वो जानती थी कि उस हादसे के बाद वो उस पर कितना शक करने लगी थी। उसने भूलकर भी किसी दोस्त को अपना नंबर नहीं दिया था। अब फोन आना हैरानी का बायस था। तुम्हारे दादा का है। आली ने रिसीवर थमा दिया, जबकि उसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। वकार साहब तो उठ गए। अलबत्ता वो तीनों वदिया की गुफ्तगू सुन रहे थे। जी दादा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब वो दूसरी तरफ का जवाब सुन रही थी। जी सब ठीक हैं, आप कब मिलने आएंगे? वो बेकरारी से बोल रही थी। मैं कैसे आऊँ? वो मासूमियत से बोली। शायद दूसरी तरफ से उसको आने का कहा गया था। जी कोशिश करूंगी जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। साथ ही उसने फोन बंद कर दिया और आंखों में उमड़ आने वाली नमी को उसने दुपट्टे के कोने में जज्ब कर लिया और चली गई। हूँ, सालों साल खबर तक नहीं ली। अब हमने पाल लिया तो याद आ गई, और ये भी कितनी मीसमी है जो बेकरारी से पूछ रही थी कि कब आएंगे। ड्रामेबाज। रुकैया बेगम का मूड बहुत बिगड़ गया था, जबकि वली मोबाइल पर मसरूफ था और चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही थी कि दूसरी तरफ कौन है। जबकि आली अफसोस से गर्दन हिलाता हुआ उठ गया। आजकल आली काफी मसरूफ था। वो सीएसएस की तैयारी कर रहा था, जबकि वदिया के बीए के पेपर सर पर खड़े थे। आज अनवर और जकिया बेगम ने आना था, लिहाजा वो किचन में मसरूफ थी। शामी कबाब तले, साथ ही चाय दम पर रखी। उसके साथ उसने चाट भी बना ली थी। घंटी बजी, उसने खिड़की से झाँका। अनवर साहब, जकिया बेगम, नायला और रिजवान आए थे। रिजवान को देखकर उसका हल्क तक कड़वा हो जाता था। उसके हाथ और तेजी से चलने लगे, क्योंकि उनके सामने वो मामी से डांट खाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। सब लोग ड्राइंग रूम में बातों में मसरूफ थे जब वो ट्रॉली सजाकर अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम, मध्यम आवाज में उसने सलाम किया। अनवर साहब ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, जबकि जकिया बेगम ने और सर हिलाया। नायला ने सर हिलाने की जहमत भी गवारा ना की। खाला, आली कहाँ है? नायला ने उसे ना पाकर पूछा। बेटा ऊपर है, कमरे में। जाओ वदिया बुला ला।
रुकैया बेगम ने वदिया को हुक्म दिया, अरे रहने दे खाला, मैं चली जाती हूँ। नायला एक अदा से बोली और निकल गई, जबकि वदिया चीजें मेहमानों के आगे रखने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो आली ने किताबों से सर निकाला। कम ऑन। हाय आली, नायला की शोक आवाज गूंजी। अरे तुम? वो ऐसे बोला जैसे उसको पता ही नहीं था कि उन्होंने आना है। जी हाँ, हम। रॉयल ब्लू कलर के सूट में बालों को खोले और तेज मेकअप में वो जरा भी आली को मुतासिर ना कर सकी। क्या कर रहे थे तुम? वो टेबल से टेक लगाकर उसके मुकाबिल खड़ी थी। झक मार रहा था। वो मुस्कुराया। हाँ, हा हा हा। उसकी हंसी गूंजी। तुम भी ना आली। उसने उसके कंधे पर चपत लगाई, जिसे उसने नागवारी से देखा, मगर वो नजरअंदाज कर गई। तुम नीचे नहीं आए? वो अपने लंबे नाखूनों को देखकर बोली। नहीं आया। जवाब मुख्तसर था। उसे इस वक्त नायला का कमरे में आना और बेफुजूल बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हम आए थे तुमसे मिलने, तुम्हें आना चाहिए था। वो जरा झुकी तो सिर का दुपट्टा सरक गया और गिरहबान का राज खोलने लगा, मगर नायला बेनियाज बनी रही। आली ने नजरें चुरा ली। मुझे अभी काम है, तुम चली जाओ प्लीज। आली ने साफ रेड सिग्नल दिखाया और किताबों में सर दे दिया। आली के रवैये पर सुख्ती महसूस करती वो कुव्वत से सर झटकती टक टक अपनी लंबी एड़ी वाली जूती को जमीन पर मारती निकल गई। कितनी फजूल हरकतें करती है ये, आली ने ताज्जुब से सोचा और किताबों में गुम हो गया। वो ड्राइंग रूम में आई तो बड़े बातें करने में मसरूफ थे, जबकि नायला के नुकोश तने हुए थे, जिसे सिर्फ वदिया ने महसूस किया। भाई साहब, मेरा तो ख्याल है नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अभी बस रमजान आने वाला है, इसमें मेरा और रुकैया का उम्रे का प्रोग्राम है। छोटी ईद के बाद मंगनी कर लेंगे और बड़ी ईद के बाद शादी। मौसम भी ठीक होगा उस वक्त। वकार साहब बोले, भाई साहब ये मंगनी वंगनी रहने देते हैं, सीधा शादी कर लें बड़ी ईद के बाद। जकिया बेगम ने फट से कहा, क्योंकि मंगनी पर उनका पैसा खर्च होने के ज्यादा चांसेस थे। ये भी ठीक है, हमें मंजूर है, फिर बड़ी ईद के बाद कोई तारीख रख लेंगे। वकार साहब बोले, आप खैर से उम्रे से आ जाएं, फिर तारीख भी रख लेंगे। वो निहायत अदब से बोले, जी इंशाअल्लाह, आप बस तैयारियां रखें शादी की। वकार साहब ने खुशगवार मूड में कहा, चलो नायला, सबका मुंह मीठा करवाओ। जकिया बेगम ने मुंह बिसूरी नायला से कहा। वो बादल नख्वास्ता उठ गई। आज वकार साहब और रुकैया बेगम की फ्लाइट थी। सारे एक बार फिर जमा थे। उनकी फ्लाइट रात 12 बजे थी। इफ्तारी वगैरह से फारिग होकर सब इकट्ठे बैठे थे, सिवाय वदिया के, जो किचन में हस्बे मामूल मसरूफ थी। भाई साहब, आप खैर से वापस कब आएंगे? जकिया बेगम ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। बस वहाँ ईद पढ़कर उसी दिन की फ्लाइट है वापसी की। रुकैया बेगम ने जवाब दिया। वैसे ही आज तेरा रोजा है वहाँ, आज 14 होगा, हमें सिर्फ 15 दिन मिले हैं। वकार साहब ने कहा, वैसे ये भी खुदा का खास करम है कि आखिरी अशरा गुजारने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप हमारे लिए भी जरूर दुआ करें कि अल्लाह हम जैसों को भी अपना घर दिखाए। अनवर साहब मुअद्दिब लहजे में बोले। जी जरूर, इंशाअल्लाह, वकार साहब बोले। रुकैया बेगम सबसे गले लगी और शुमाइला का तो खास कर माथा चूमा, मगर बदनसीब वदिया की तरफ तो उन्होंने देखा ही नहीं। हालांकि वो सबके दरमियान खड़ी थी, उसे निहायत सुबकी महसूस हुई। ये बात वकार साहब ने नोटिस की और उनके माथे पर शिकन का जाल बिछ गया। वो खुसूसन वदिया को गले मिले, उसका माथा चूमा। तुम दोनों का ख्याल रखना और अपना भी, और घर का तो तुम रखती ही हो, मुझे पता है। वो उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसकी आंखें नम थीं। जी मामू, वो हंस दी। शाबाश मेरा बच्चा। उन्होंने उसे सर पर प्यार दिया। फिर सबसे मिले। उनके निकलते 10 बज गए। ज़किया बेगम का इरादा सुबह सहरी करके ही जाने का था, मगर अनवर साहब ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया और जाने का कहा। सबको चारों नाचार जाना ही पड़ा और वदिया ने शुक्र का कलमा पढ़ा। आज मामू को गए 9 दिन हो गए थे। आज उसे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा था। वो कॉलेज से अपनी डेट शीट भी ले आई। ईद के थोड़े दिनों बाद ही उसके पेपर थे, लिहाजा अब वो पूरी तवज्जो से पढ़ना चाहती थी। उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। 2 बज रहे थे। वो किताबें खोलकर बैठ गई। घर पर सिर्फ आली था, वो भी अभी सेंटर से वापस आया था। दफअतन बेल बजी। वो उठना नहीं चाहती थी, मगर मुसलसल बेल की वजह से उसका तसलसल पढ़ाई का टूट चुका था। सो चारों नाचार उसे उठना पड़ा। गेट खोलते ही उसके माथे पर आने वालों को देखकर वाज़ेह शिकन नमूदार हो गई। उसने रास्ता छोड़ दिया। शुमाइला, नायला और रिजवान दाखिल हुए, हाथ में बैग। इस बात का वाज़ेह इशारा थे कि वो रहने की नीयत से आए हैं। सब कहाँ हैं? शुमाइला सोफे पर बैठते हुए बोली। आली ऊपर होंगे, वली भाई ऑफिस में। वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गई। आली ऊपर है, फिर वो नीचे क्यों नहीं आया? क्या उसे पता नहीं कि हम आए हैं? नायला ने हैरत से पूछा। पता नहीं, वदिया ने कंधे उचकाए
और उठ गई। आज गैर मामूली तौर पर वली इफ्तारी पर मौजूद था, वरना वो इफ्तारी पर मौजूद नहीं होता था। वदिया का काम फिर से बढ़ गया था। कहाँ वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि काम कम है, अब वो आराम से किताबों को टाइम दे पाए, और कहाँ तीनों की आमद, ऊपर से फरमाइशें ऐसे जैसे होटल में आए हों। वदिया प्लीज फ्रूट चाट चटपटी बनाना, शुमाइला ने कहा, और हाँ मेरा हल्क सूख जाता है इसलिए शरबत मीठा और ठंडा हो। पकौड़ों में प्याज जरा ज्यादा डाल लेना, फूले फूले अच्छे लगेंगे। नायला ने फट से अपनी हाँ की। काफी दिन हो गए हैं दही बड़े नहीं खाए, आज इफ्तारी में बन जाए तो मजा आ जाएगा। रिजवान कब पीछे रह सकता था। और वदिया सिर्फ मुंह लटकाए सब सुन रही थी। वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती थी। बोलने का मतलब मामी के आते ही शामत उसने वली को देखा, मगर शायद उसे शुमाइला के अलावा किसी में दिलचस्पी नहीं थी, और आली के बारे में उसे कोई खुशफहमी नहीं थी। सो चारों नाचार वो किचन में घुस गई, जबकि पीछे से हंसी और कह कह उसका खून जला रहे थे। रिजवान चला गया, मगर शुमाइला और नायला का इरादा रहने का था। 3 दिनों में उसकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। सहरी में फरमाइश, दोनों बहनें सहरी में 2 या 3 पराठों से तो इंसाफ करना फर्ज समझती थी। कहाँ वो बेचारी सिर्फ 4 पराठे बनाती थी। वली भाई 2 खाते थे, आली एक और एक अपना, और कहाँ 7-7, 8-8 पराठे। और इफ्तारी में अलग फहरिस्त तैयार होती थी। आज वो बेहद थक गई थी। किचन से फारिग होकर अभी उसने पहले जीने पर कदम ही रखा था कि नायला की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। वदिया, जरा चाय ही बना दो, मूड हो रहा है। हाँ, मेरा भी दिल कर रहा है। शुमाइला ने अपने लट को उंगली में घुमाकर कान के पीछे किया। और वली, आप भी लेंगे ना? इंतहाई प्यार भरा लहजा था। अगर आप कहेंगी तो जरूर लेंगे। वली ने भी जी हुजूरी में कोई कसर न उठा रखी थी। तुम भी लोगे यकीनन आली, नायला ने एक अदा से कहा। आली ने वदिया का चेहरा देखा। थकन के वाजे आसार उसके चेहरे पर थे, और मायूसी की लहर भी उठ रही थी। उसने किचन की तरफ कदम बढ़ाया। कभी तुम अपने हाथ की भी चाय पिलाओ, हम तो तरस गए तुम्हारे हाथ की चाय पीने को। रोजाना एक ही हाथ की चाय पी पी कर दिल उचाट सा हो गया है। उसने अपनी आवाज में शीरीनी बोली, और नायला को देख कर कहा। वदिया के कदम थम गए। उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में क्या था वो समझ नहीं पाया। हाँ, कह तो सही रहे हो। उसने तंज का तीर वदिया पर चलाया। अब तुमने कहा है तो जरूर। साथ ही आली का शीरीं लहजा उसके सर से पांव तक शात कर गया। तुम जाओ वदिया अपने कमरे में, नायला बना देती है। आली ने वदिया से कहा, और वो पलट गई। आली आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रहा था, पानी चढ़ाते हुए। नायला के चेहरे पर फतेह की मुस्कुराहट थी। इधर शुमाइला और वली एक दूसरे में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ होश नहीं थी। एक तो गधों की तरह काम करो, ऊपर से 100-100 बातें सुनो। वदिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी, ना चाहते हुए भी उसे अपनी इज्जत अफजाई पर रोना आ रहा था। मैं क्यों रो रही हूँ? आली से कोई उम्मीद ना मैंने कभी रखी थी, और न रखूंगी। उसने उल्टे हाथ की पुश्त से आंखें रगड़ डाली, मगर उसको अपने आंसू पर काबू ही कहाँ था। वो नोट कर रही थी, जब से शुमाइला आई हुई है, तब से वली की इफ्तारी घर पर होती है, और फिर दोनों इकट्ठे बैठे पता नहीं कौन से वफाओं के वादे करते रहते हैं, जो खत्म ही नहीं होते। अगर नायला पास बैठी भी हो, तो वो ऐसे ही बेनियाज दिखती, जैसे यहाँ है ही नहीं। जबकि आली की उसने कभी परवाह नहीं की थी कि वो कब आता है और कब जाता है और क्या करता है। वो वाहिद फर्द थी जो नमाज और तरावी पढ़ लेती थी, जबकि बाकी सारे इस फर्ज को यकसर भूले हुए थे। वो किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। सिर्फ 2-3 रोजे ही रह गए थे, और उसने अपने ईद के जोड़े को भी सीना था। उसे वक्त ही नहीं मिल रहा था। सुबह वो किताबें लेकर बैठ जाती, और दोपहर और सारी रात किचन की नजर हो जाती। फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करते करते उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही थी। कभी-कभी उसे अपनी बेबसी पर शदीद गुस्सा आता, और कभी-कभी रोना, मगर वो बचपन ही से मामी के ज़ेरे तसल्लुत रहने की वजह से काफ़ी डरपोक थी, और इतना हौसला नहीं रखती थी कि उनके मुखालिफ जाए। उसने अपना दुपट्टा जो नमाज के लिए बांधा था, खोला और कप में चाय निकाल रही थी, जब उसने खिड़की से आली भाई को देखा, जो अंदर आ रहे थे। गेट से अंदर आए ही उन्होंने अपने सर की टोपी उतारी और जेब में रख ली। ओह! तो ये नमाज़ पढ़ते हैं? उसने ज़ेरे लब कहा। मुझे क्या, जो भी करें। साथ ही अज़ली बेनियाज़ी उमड़ आई। वो कंधे उचकाकर अपने स्टोर नुमा कमरे में घुस गई।